اب ہم اس مین ٹاپک پہ پہنچے. یہ گزشتہ دو گفتگویں آپ یوں سمجھ لیجیے ڈاکٹر فضل الرحمان کی تفہیم کے لیے تمہیدی گفتگو تھی. تو تمہیدی گفتگو کافی طویل ہو گئی. مجھے امید ہے کہ دوستوں نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا اور بہت زیادہ آپ مستفید بھی ہوں گے. تو آج ہم انشاءاللہ براہ راست ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب پر گفتگو شروع کریں گے. شروع تو کرنے ڈاکٹر کی جو پہلی جو اٹمپٹ ہے وہ ہمیں اقبال کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ وہ جا کے انہی کے ڈکشن میں انہوں نے ریسرچ میتھڈالوجی وہاں سے ہسٹوریکل پیٹرن ہے اس میں جو ان کی انہوں نے جو آرک ریزی سے جو کام کیا ہے وہ اتنے پائے کا کام ہے کہ وہ شاید اگلے 100 150 سال میں اس کام میں اضافے ممکن ہو، ابھی ان کو سمجھنے کا ٹائم چل رہا ہے. اور اس پہ الحمدللہ کہ مسلم امہ جو ہے اس میں اب بیداری ہے کہ فضل الرحمان کی زندگی میں وہ جو احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے نا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. واہ کیا بات. ان کے جو فلسفی میں ڈاکٹر فضل الرحمان اتنے اندر گھس گئے کہ جیسے نے کہا نا آپ کے کسی کی آنکھ اتنی بینا ہے کلومیٹر دور ایک کالے پہاڑ پہ چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو بھی دیکھ لے. یہ میں ایک تمثیل بتا رہا ہوں کہ اس کی بینائی اتنی تیز ہے کہ وہ 100 کلومیٹر دور ایک کالے سیاہ پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو بھی دیکھنے کے قابل ہے. تو گریک فلسفی کے حوالے سے یہ تمثیل ڈاکٹر فضل الرحمان کو فٹ آتی ہے کہ انہوں نے گریک فلسفی کو اتنا تھارولی اسٹڈی کیا، اس کی تمام ڈائمینشنز کو اسٹڈی کیا کہ فکر اسلامی میں انہیں جہاں جہاں گریک فلسفی اسلامی فکر کے اوپر پیسٹڈ نظر آئی ہے نا انہوں نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ دیکھو، یعنی وہ غزالی کو پریتتے ہیں تو غزالی کے فکر میں، حالانکہ غزالی نے گریک فلسفی کو ریجیکٹ کیا تھا لیکن گریک فلسفی کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا تھا اور انہوں نے اسی مذہبی وجہ سے نا تعبیر ان میں. سب کا جو فکر اسلامی فہم ہے وہ غزالی ان سے مختلف رکھتا ہے نا. ظاہر سے اب یہی بات اپنے تیمیہ پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یہی بات مودودی صاحب پہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا, انہوں نے ماڈرنزم میں جو کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل جو تحریکیں چل رہی تھی فلانا ڈمکانا اسی کو سامنے رکھ کے اسلام کی تشریح, یہ الزام تو کسی پہ بھی لگایا جا اگر سکتا ہے نا. ابن تیمیہ نہ آتا تو قرآن و سنت تو ہمارے ہاں سے جا ہی چکے تھے. قرآن و سنت کی واپسی ہوئی ابن تیمیہ کے ساتھ ہے، ورنہ ہم کمنٹریز اور سپر کمنٹریز میں جو سیکنڈ جو سورسز آف نالج ہیں اوریجنل سے تو ہم بہت دور جا چکے تھے. یہ ابن تیمیہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے واپس کمیونٹی کو قرآن اور سنت سے جوڑا. ولیم کینٹویل اسمتھ کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے وہاں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ جوائن کی. تو انہوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ اسلام پر اس طرح کی ریسرچ کریں کہ اسلام کا جو فنڈامنٹل تھیسس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. اس کے اندر انہوں نے جو چیپٹر ہے نا قرآن، اس چیپٹر پر انہوں نے وہی جو ہے اس کا ایک سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ لکھا ہے. وہ جو سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر چوٹ پہ کہا جو ان کی ذہن میں آیا، پھر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرے اوپر شیعہ ناراض ہوں گے، میرے اوپر دیوبندی ناراض ہوں گے، اہل حدیث ناراض ہوں گے. انہوں نے کسی کی، آپ دیکھیں نا اہل تشیع کے لیے ایک جملے میں ان کا پورا تھیسس اڑا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی صحیح. پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان سے میرے نکلنے میں ایک اہم کردار اہل تشیع کا بھی ہے کیونکہ انہیں میری چیزیں بہت کھٹتی تھی. صحیح. تو تو ڈاکٹر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان ایک روایتی سنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب اور یہ سب وہی اسی مکتب سے تھے, لیکن جب انہوں نے اپنی تعلیم وغیرہ حاصل کی, ایک دانشورانہ لیول پر انہوں نے جب کام شروع کیا, تو اب وہ ایک آفاقی مفکر بنے کی جنہوں نے اپنا کچھ پیرامیٹر وضع کیے دین کو سمجھنے کے یا ان سب چیزوں کا جائے, اور اس کے اوپر جس مسلک یا جس بڑی شخصیت پہ عزت پڑی اپنے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جب دین کی تشریح کی, تو اس کی انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی کہ میری عزت جو سنت پہ پڑ رہی ہے, شیعت پہ پڑ رہی ہے, خارجیت پہ پڑ رہی ہے, اعتزال پہ پڑ رہی ہے. یعنی ایک ایسے مفکر تھے وہ آفاقی جس کو ہم کسی مسلک کے اندر نہیں رکھیں گے. جو ان کا ٹھیک. تھیسس ہے وہ بالکل انہوں نے امام غزالی کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ حجت الاسلام ہے اور بڑا برا منایا. ابن العربی کو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے تو میں اپنے دشمن کو خرید رہا ہوں. لیکن انہوں ابن نے تیمیہ کے ساتھ بہت رحم دلی سے کام لیا. اس کے ہاں ابن تیمیہ چونکہ قرآن کی اسپرٹ سے انہیں بہت قریب سلام نظر اور آتے ہیں. آداب. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کرتے ہوئے تیسری نشست کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میری خوش قسمتی یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے دو پروگرام میں بتایا, کہ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کیا. ڈاکٹر صاحب فضل الرحمان پر آنے سے پہلے ہم نے جیسے پہلی نشست میں فکر اسلامی حضور سے لے کر ڈاکٹر اقبال کے عہد تک, اور دوسری جو نشست تھی وہ ہم نے عہد جدیدیت کے اوپر کیا, اور اس میں یہ جو عام طور پر
बात की जाती है कि जदीदियत क्या है और तजदीद क्या है और जिद्दत क्या है, और इस पे एक बहस है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत और बहुत तफसील से उस अहद पर भी रोशनी डाली और इन इस्तिलाहात की भी वजाहत की। तो अब हम उस मेन टॉपिक पे पहुंचे। ये गुज़श्ता दो गुफ्तगुएं आप यूं समझ लीजिए डॉक्टर फजलुर रहमान की तफहीम के लिए तमहीदी गुफ्तगू थी। तो तमहीदी गुफ्तगू काफ़ी तवील हो गई, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ने उसको पसंद भी किया होगा और बहुत ज़्यादा आप मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह बराह रास्त डॉक्टर फजलुर रहमान साहब पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो डॉक्टर गुलाम शबीर साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आपकी भरपूर इल्मी और फिक्री पुरमग़ज़ गुफ्तगू से तालिब इल्म ने तो बहुत इस्तिफादा किया और हमारे दोस्तों ने भी इंशाल्लाह ज़रूर इस्तिफादा किया। तो आज हम डॉक्टर फजलुर रहमान के अफकार के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, और कोशिश ये होगी कि इसी निशिस्त में बात पूरी हो, अगर ना हो तो मैं आपसे एक और निशिस्त के लिए जो है ना मैं दरख्वास्त करूंगा, ठीक है डॉक्टर साहब? तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें डॉक्टर फजलुर रहमान कौन है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ तो थोड़ा सा इख्तिसार के साथ अगर आप उनका थोड़ा सा तारुफ हमें करवाएं, और आलमी सतह पर उनके इल्मी क्या मकाम है, ये थोड़ा आपने ज्यादा बताना है। जी बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन सिगरी साहब कि आपने एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू में इंगेज किया है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऐप की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम ऐद जदीद में भी मेडिवाल इरा के माइंड सेट के साथ जी रहे हैं, और यही हमारी तनज़्ज़ुई का सबसे बड़ा सबब है कि वो दीन जो साइंटिफिक रीजंस के साथ सोशल अक्लीम पे भी बात करता है, पॉलिटिकल अक्लीम पे भी बात करता है, और तारीख की अक्लीम पे भी बात करता है। वो इमाम इब्न तैमिया ने एक बड़ा खूबसूरत इस पे वो लाइन खींची है। वो कहते हैं कि 425 सदी हिजरी तक का जो जमाना है, चार सौ 400 पच्चीस हिजरी, हम्म। ये इस्लाम का कंस्ट्रक्टिव फेज है। इसमें जो कलाम डिवेलप हुआ, इसमें जो फिक डिवेलप हुई, इसमें जो तसव्वुफ डिवेलप हुआ, इसमें जितनी इस्लामिक डिसिप्लिन्स जो है वो डेवलप हुई हैं, उनको ये सही मानते हैं। इनको वो क्लासिकल तसव्वुफ कहते हैं, क्लासिकल कलाम कहते हैं, क्लासिकल फिक कहते हैं। लेकिन 425 सदी ईसवी से सदी हिजरा से, हिजरी से। हिजरी से ऑनवर्ड जो टाइम है ना, वो कहते हैं कि फिर कंजेक्चर्स आ गई। वो जो दीन का जो साइंटिफिक असलूब था, जो कुरान कहता है ना कि जन जो है वो हक की जगह नहीं ले सकता, जो जन्नी इल्म है, जन्नी हम्म। यही कंजेक्चरल इल्म जिसकी कोई बेसिस ना हो, फर्म बेसिस ना हो, उसको हम्म। जन्नी इल्म कहा गया है। कुरान उसको कहता है कि आप आयत पढ़ेंगे शायद उसको, जन जो है वो व इन जन्न ला युगनी मिनल हक़ शै, बहुत मिनल हक ज्यादा के शे, मकामात पर है। व इन जन्ना, यानी बेशक ये जो जन है, ये जो तुम्हारे गुमानों के लश्कर है, जो तुम्हारी तवहमाती जो फिक्र है, वो चाहे हम्म। जितने घोड़े दौड़ा ले, वो हक का एक जुज्व भी कवर नहीं कर सकती। पूरे हक सही। को तो क्या, हक का एक जुज्व, जिसे कह रहे हैं कि आप एक बिल्कुल माइन्यूट सा हिस्सा, वो उसको भी रिप्लेस नहीं करता। तो ये टाइम जो 425 हिजरी से ऑनवर्ड का है, इसमें हमारे यहाँ कंजेक्चर्स दर आती हैं। वमा वमा लहुम बिही मिन इल्मिन इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, सूरह नजम आयत नंबर सूरह 28। वन नज्म की, बिल्कुल। तो ये वही कि कुरान कह रहा है कि हम साइंटिफिक अप्रोच से बात कर रहे हैं, इररिफ्यूटेबल ट्रुथ तुम्हारे सामने रख रहे हैं, कि जिसको तुम अगर जितनी सही कर लो। आप देखें ना कि कुरान किस तरह कह रहा है कि कान्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, फर्रत मिन कस्वरा। फर्रत मिन कसवरा। यानी बल कुरान इतने सच और इतने अटल सच के साथ जो है ना, वही अपने मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सच पे खड़े हैं कि जब कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, जब उनके साथ आर्ग्यू करते हैं हक के ऊपर, तो जब वही उनके सामने बयान की जाती है तो उनकी हालत वो होती है जिस तरह गधों के एक लश्कर के अंदर शेरनी या शेर घुसा है, तो वो कितने बिदकते हैं, अपने हवास खो बैठते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं। तो दूसरी जगह वो एक जगह है कि कुरान ने फरमाया है कि खुशबुम मुसन्नदा,
अन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, सूरह मुनाफिकून में। जी जी। यानी इनकी हालत क्या है वही के सामने, जिस तरह यानी खुश्क लकड़ियों का एक ढेर लगा दिया जाए, उनमें क्या जान होती, वो जलने के सिवा किसी मसरफ की नहीं होती। यानी आप ये मुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कह रहा है कि इनके अजसाम देखो, बड़े दिखने में बड़े ज़ाहिर सरदारान मक्का हैं और बड़े पॉलिटिकल कल्ट रखते हैं, एक बहुत बड़ा इनका जो है ना वो सोशल स्टेटस है। लेकिन जब ये गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के पैराए में इनकी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के लकड़ियों का एक ढेर जमा कर ये दिया मुना जाए, एक दूसरे के ऊपर उनको जमा कर दिया जाए। ये यानी मुनाफिकीन के बारे में है ना, वइज़ा जी। रअयतहुम तुअजिबुका अजसामहुम व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुम मुसन्नदा। यानी उनकी क्या, यानी कुरान ने क्या खूबसूरत तमसील से उनका जो है, उनका जो इनसाइड आउट की है कि इनकी हालत बस ये होती है कि ये एक वो टिम्बर्स का एक पूरा गट्ठर है जिस तरह एक दूसरे के ऊपर रख दी गई है। यानी इनके अंदर हयात नहीं है, इनके अंदर लाइफ नहीं है। लाइफ वाला मैसेज जो है वो आप दे रहे हैं, जो लाइफ ओरिएंटेड है, जो लाइफ को प्रोग्रेसिवली ओरिएंट कर रहा है, तो वो तो आप बयान कर रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ ये है कि यानी जो इब्ने तैमिया की तशखीस है, यानी यानी 4 सदियां जो है हिजरी, उनको ले लें, ये एक क्वार्टर जो है ना, 5th सदी जो है हिजरा, यानी 425 साल। उसके बाद जो कलाम डेवलप हो रहा है, उसके लिए वो कहते हैं ये न्यू कलाम है। NEO, न्यू, जो जिस तरह हम नहीं कहते कि कॉलोनियलिज्म का फेज गुजरा तो फिर अब न्यू कॉलोनियलिज्म है, यानी वो हमें इकोनॉमी के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। यानी मॉड सही। बदल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि 425 हिजरा के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होता है उसमें न्यू कलाम जन्म ले रहा है, उसमें न्यू तसव्वुफ जन्म, न्यू मिस्टिसिज्म जन्म ले रहा है, उसमें जो है वो न्यू फिक जन्म ले रही है। यानी वो क्लासिकल से बिल्कुल डिवोर्स्ड है, उससे बिल्कुल अलग थलग है, क्योंकि कंजेक्चर्स आ गई हैं और इन्होंने जो है वो सब्सटेंशिएट करना है उनके मफादात को, क्योंकि स्टेट बहुत मजबूत है और स्टेट के इंटरेस्ट और स्टेट की जो नाम नहाद शूरा है, जो क्लीक है, उनके इंटरेस्ट, और ये जो हजरत मूसा के अगेंस्ट आप देखते हैं ना कि कोई भी इनकलाब होता है, ये मार्क्स ने अच्छी तशखीस की है कि जो इनकलाब होता है वो हमेशा 3 कुव्वतों के खिलाफ होता है। उसमें एक मर्केंटाइल इलीट होती है, उसमें एक पॉलिटिकल इलीट होती है और उसमें एक रिलीजियस इलीट होती है। तो ये रिलीजियस इलीट जो है वो उनको लेजिटिमाइज कर रही होती है, उनके मफादात को। तो जो भी इनकलाब आता है वो इस 3 कुव्वतों के संबंध को, इनके गठजोड़ को ब्रेक करता है, इनके मफादात को जो है ना वो बिल्कुल सिफर करके एक जस्टिस बेस्ड सोसाइटी को जन्म देना। जो हजरत मूसा के अगेंस्ट जो है वो आप देखें ना कि हामान है, फिरौन है, कारून है। कौन है? कारून मर्केंटाइल इलीट है और हामान जो है वो रिलीजियस इलीट का नुमाइंदा है और फिरौन जो है वो पॉलिटिकल इलीट का नुमाइंदा है। तो आप इनकलाब मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो वो भी इन 3 जो बड़े जो मोनोपलाइजर्स हैं, जो अजारादार कुव्वतें हैं, जो मुआशरे के वसाइल पर काबिज होते हैं, जो अपने जाओ हशम के सामने दूसरों को बिल्कुल उनकी कोई अहमियत नहीं पैदा होने देते, तो उनके खिलाफ एक सक्सेसफुल इनकलाब था, इनकलाब इस्लामी। लेकिन ये जो 4th सदी जो हिजरा ऑनवर्ड है, उसमें यही 3 कुव्वतें दोबारा पनप आती हैं। यानी जिनके खिलाफ इनकलाब आया था, ये भी एक इंतहा जो है ना वो तारीख का अलमिया है कि ये लोग, ये जो तीनों इलीट्स हैं, ये पहले इनकलाब को रिजिस्ट करते हैं, जब वो समझते हैं कि अब कोई इसमें वो इसका रास्ता नहीं रोका जाता तो फिर इसका हिस्सा बन जाते हैं, और फिर ये अंदर से कमजोर करते हैं और फिर एक पावर के तौर पे दोबारा उभर आते हैं। ये जो अंदर से जो मार देते हैं, ये अली शरीफी का बड़ा खूबसूरत जुमला, वो कह रहे हैं कि ये जो दाखिली जो इनका मुकाबला है ना, दाखिली सतह पर, जी। वो खादी सतह पर इनका जो मुकाबला होता है उससे ज्यादा टफ होता है और उनसे ज्यादा दकीक होता है और इसकी तशखीस भी बहुत मुश्किल होती है। हम्म। तो इनकलाब मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों यानी कुव्वतों के अगेंस्ट था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ह्यूमन इगैलिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश करके दिखाया, कुरानी जो वही है उसकी रोशनी में, और दुनिया को एक निज़ाम दे के गए
लेकिन वही जो होता है कि हर इनकलाब फिर रिवायत बन जाता है। फिर ये 4वीं सदी हिजरत तक आते आते ये फिर रिवायत में ढल गया ये इनकलाब। और इनकलाब जो माओ कहता है ना कि एक मुस्तकिल अमल का नाम है, ये कोई वन ऑफ एक्टिविटी या वन ऑफ एंटरप्राइज नहीं है कि आपने इनकलाब बर्पा कर दिया और बस हो गया। इनकलाब अपने आप को साइकिलिंग रखता है, वो हम्म। अपने आप को मुसलसल बरुए कार रखता है। जब वो अपने आप को बरुए कार लाना छोड़ देता है तो वो जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं वो री इमर्ज होती हैं और मोनोपलाइज कर लेती हैं दोबारा उस सोसाइटी को। तो ये चीज थी। तो हमने जो पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है उसमें हमने यही जो एद रिसालत से लेकर एद इकबाल तक का जो हमारा तारीखी इर्तिका है फिक्री, हमने उस पर भी बात की। फिर हमने वेस्टर्न रेनेसां पर भी बात की दूसरे एपिसोड में कि किस तरह मगरबी निशत सानिया हुई और किस तरह वो स्टीयरिंग व्हील पर आए और किस तरह उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया। और उस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में ये भी अर्ज किया था कि अभी वेस्टर्न इनकाउंटर नहीं हुआ था कि उससे बहुत पहले हमारे यहाँ ये एहसास दामनगीर हो चुका था कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ गलती हुई है, हमारा डिक्लाइन है, हम क्रिएटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, हम जो कुरान की स्पिरिट है उससे बहुत दूर हो गए हैं। सीरत गाड़ी कहीं से मुस्तफा पटरी से उतर गई है। पटड़ी से हम उतर चुके हैं। तो ये अभी लोग कहते हैं ना कि ये तो वेस्ट आया तो एहसास हुआ, ऐसा नहीं है। ये एहसास हमारे यहाँ शुरू से दामनगीर रहा है। वो जो हमारे यहाँ एक वो सयूती ने जो हदीस रसूल जो कोट की है ना कि हर यानी सदी के एंड पे एक रिफॉर्मर आता है, ये हदीस अगर इसको ना भी माना जाए तो अपनी जगह ये एक फैक्ट है कि 100 साल में कोई एक आध रिफॉर्मर जो है वो हर कम्युनिटी के अंदर पैदा होता है कि वो अपनी कम्युनिटी जो उसकी पटड़ी से उतर चुकी होती है, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, रिफॉर्मर तमाम मजाहिब में आते हैं और वो रीओरिएंट करते हैं, दोबारा उनकी जहत नुमाई करते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल एक हिस्ट्री का जो नेचुरल फिनोमिना है कि हमारे यहाँ वक्तन फवक्तन रिफॉर्मर्स आते रहे हैं और कम्युनिटी को रीओरिएंट करते रहे हैं जो उनकी ओरिएंटेशन जिस ऑर्डर का शिकार हो चुकी थी। तो ये सफर इमाम गजाली से शुरू होता है खास तौर पर अगर हम प्रोमिनेंटली देखें तो। और गजाली के बाद इब्न तैमिया आते हैं, ये अपना अरे इब्न अरबी है, फिर इब्न तैमिया है, फिर उसके बाद शेख मुजद्दद अल फिसानी है, फिर शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा है। फिर एज जदीद में जब हमारा वेस्ट से इनकाउंटर शुरू होता है तो उस वक्त जो सबसे बड़ी फिगर है जिसने उस पूरे चैलेंज को अ, बिल्कुल मुनासिब अंदाज में समझा और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, वो है सैयद जमालुद्दीन अफगानी। सैयद जमालुद्दीन अफगानी जो है उनको एक ये एज हासिल है कि वो जब मिस्र में रहे हैं तो मिस्र में शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा की जो हुज्जतुल्लाह अल बालिगा है, ये 2 2.5 सदियां वहाँ निसाब का हिस्सा रही है। तो उन्हें वहाँ फिक्र वलीउल्लाही से जो है वास्ता पड़ा है, उन्होंने इनडायरेक्टली देखा है उसको। लेकिन जो उनका फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पे जो उनका उनकी दस्तरस थी, वो सोसाइटीज और कम्युनिटीज के जो राइज एंड फॉल के जो लॉज हैं उनके ऊपर जो उनकी दस्तरस थी, वो उनको पिछले हमारे उन लोगों से बहुत मुमय्यज कर रही है क्योंकि उनको वेस्ट से दरअसल इस इनकाउंटर पे, नहीं हुआ। हाँ, इस पे आपने गुज़श्ता है उससे बहुत तफसील से बात की है, बहुत अच्छा। डॉक्टर जमालुद्दीन अफगान, डॉक्टर कह रहा हूँ, वैसे डॉक्टर ही है वो। जी जी। तो अब मैं चाह रहा था कि अगर फजल रहमान पे अगर हम बस आ जाए तो, बस हाँ। मैं वही लिंक अप कर रहा हूँ उनके हाँ, साथ। क्योंकि गुज़श्ता उस पे आपने, उस पे जमालुद्दीन तो बहुत तफसील से और बहुत अच्छा बयान किया। जी और जी मैं जी। इंशाल्लाह आगे किसी वक्त आपसे टाइम लूंगा जिसमें सिर्फ जमालुद्दीन अफगान पे बात करनी है, क्योंकि उनके हवाले से हमारे यहाँ बहुत से शुकूक व शुबहात भी है, बहुत से मसाइल भी हैं। हालांकि इस्लामी जो जदीद इस्लामी फिक्र के अव्वलीन जो उसके मेमार है वो जमालुद्दीन साहब ही जी बनते हैं। जी तो हम उस पर इंशाल्लाह तफसील से, मैंने आपसे टाइम लेना है। जी। बिल्कुल। तो ये जो इस्लामिक मॉडर्निज्म है इसका फादर है सैयद जमालुद्दीन अफगानी। जी, ठीक है, वो आपने बिल्कुल तफसील से उन्होंने बताया हुआ। आलम इस्लाम में एक गैलेक्सी पैदा की जो उनसे इन्फ्लुएंस थे। और उनमें सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा जो मुतासर शख्सियत जिन्होंने जमालुद्दीन अफगानी को बहुत समझे कि बड़ी फिक्री
कराबतदारी है उनके दरमियान और वो उनको अपना मुर्शद मानते हैं, वो है अल्लामा इकबाल। राइट। अल्लामा इकबाल ने जो लाइन जो रखी थी, जो सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने मॉडर्निज्म की, इस्लामिक मॉडर्निज्म की, उन्होंने उन पैरामीटर्स पर फिक्र इस्लामी की तश्कील जदीद के उन्वान से जो लेक्चर्स दिए हैं, जो जी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम थर्ड के है। नाम से वो किताब आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। वो एक पहली सीरियस अटेम्प्ट है मुस्लिम वर्ल्ड में किसी इतने सीरियस फिलोसफिक माइंड की तरफ से कि वो वेस्ट को इस्लाम का मुकदमा उनकी टर्मिनोलॉजी में, उनकी लुगत में, उनके डिक्शन में, उनके असलूब में, एक साइंटिफिक पैटर्न में वो लिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ, क्योंकि अभी इस्लामिक मॉडर्निज्म को 50 साल ही नहीं हुए थे। सॉरी, आपको जुमला कट गया, क्या फरमाया आपने? यानी जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से जी अपने जी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रहते हुए अगर किसी ने इस्लाम का जो सीरियस स्टेटमेंट लिखा है, जी। जो वेस्ट की ही लुगत में था, वेस्ट के ही डिक्शन में था, वेस्ट की ही टर्मिनोलॉजी में था, वो हम्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वो लेक्चर्स हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, कि उन्होंने बिल्कुल यानी वेस्ट के असलूब में इस्लाम का मुकदमा पेश किया। ये जब से इस्लामिक मॉडर्निज्म की नींव रखी गई है, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था कि जो जो स्टेटमेंट था सैयद जमालुद्दीन अफगानी का, उसको प्रूव करने में या इस्लामिक मॉडर्निज्म को वीव आउट करने में जो दो शख्सियात हैं मिडल ईस्ट में, मुफ्ती अब्दहू और यहाँ सर सैयद, ये दोनों नाकाम ठहरे। और हमें जी। उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये फिक्र सदियों का सफर होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम जो है वो बड़ा इनकलाब आ जाए फिक्री, ये स्लोली एंड स्टेडली वो चलता है। तो वो एवोल्यूशन स्टेज ऐसी थी कि एक यानी बहुत बड़ा डिफरेंस था, यानी वेस्ट की पावर, वेस्ट की जो इल्मी ट्रेडिशन, उसकी कल्चरल रिवायत, और यहाँ की यानी जो हमारी नेटिव ट्रेडिशन, हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी थी, हमारी जो यानी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी, वो बहुत एक बड़ा गैप था। तो वो फौरी फिल नहीं हो सकता था। तो उस गैप को फिल करने की जो पहली जो अटेम्प्ट है वो हमें इकबाल की तरफ से मिली है, क्योंकि वो जाके उन्हीं के डिक्शन में उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी वहाँ स्टडी की है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में, और जर्मनी में रहे, यूके में रहे। तो फिर वो इस काबिल हुए कि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने पाँव पे खड़े, एक खुद एतमादी के साथ वेस्ट को इस्लाम का मुकदमा पेश कर सकते। ये उन्हीं का एजाज है कि पहली अटेम्प्ट हमें उनकी तरफ से मिलती है। जावेदनामा में फल के अतारिद पे जो अल्लामा इकबाल अरवा है जमालुद्दीन अफगानी और सईद हलीम पाशा से भी मुलाकात उनकी होती जी है, जी। तो वहां पर भी उनको बड़ा खिराज वो पेश किया हुआ है। हम्म। बल्कि वहां तो वो अफगानी के लिए कहते हैं कि जब वो मौलाना रूमी के साथ किसी जी। प्लेनेट पर हैं, और वहां पे वो कहते हैं कि सूरह, अतारिद पे, फल के अतारिद पे। जी जी, अतारक पे, और वहां पर वो मौलाना रूमी जो है वो अजान पढ़ते हैं, और अफगानी जो है वो जमात करवाते हैं, और जमात में जो है ना वो सूरह वन नज्म की तिलावत करते हैं, जिसमें जो है वो इंसानी अजमत की इंतहा बयान हुई है रसूलुल्लाह हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि उन्हें मिराज नसीब हुआ। तो वो कह रहे हैं कि सूरह वन नज्म जब वो तिलावत कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि इन पे वो उकदे वाह हुए हैं जो अभी तक जबरील पे भी वाह ना हुए। यानी हम्म। उनका मिनहाज देख रहे हैं फिक्री, कि यानी वो ऐसे मारिफ जो है ना कह रहे हैं कि हमारे ऊपर खुल रहे हैं उनकी सूरह वन नज्म की तिलावत से, कि ऐसे लगता है कि ये मारिफ तो अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे भी जो है वो ना खुले। उनको वो इस लेवल पे समझ रहे हैं। हाँ, ये लिख फिर रहा है कि आप, आशकारा हर गयाब आज कुरातिश बेहिजाब उम्मुल किताब अज कुरातिश, यानी ऐसी किरात है, ऐसी किरात से हर गैब जाहिर हो रहा था, और उसकी किरात से उम्मुल किताब बेहिजाब हो रही थी। क्या आगे बात है, कहते क्या हैं बात कि मैं यानी इकबाल नमाज का अपनी जगह उठा और नियाजमंदी के साथ अफगानी के हाथ पर बोसा दिया। ये अशार का मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। खैर, रूमी मेरा तारुफ कराते हुए अफगानी से कहने लगे, एक जर्रा है जो आसमान के सफर में है, इसके दिल में सोज और दर्द की एक दुनिया समाई हुई है। फिर आगे जो अफगानी बात करते हैं और मुहकमात आलम कुरानी के उन्वान से हमारे जो जो मुहाजरात कुरानी वाले मोहतरम क्या नाम है जिनका इंतकाल हुआ है,
بہت عرصہ پہلے ڈاکٹر جن کی محاضرات، اور ہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا ایک کتاب بھی ہے، جی محکمات عالم قرآنی افغانی اور اس کی روشنی میں غالباً. تو اس کے اندر جی وہ ساری جو قرآنی سوسائٹی یا اس کی معاشرت کی جو بنیادیں ہیں وہ اسی اس سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، افغانی کی زبانی. تو خیر، جی اب ہم فضل الرحمان تک انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں. نہیں نہیں، وہ تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جسے 2 رکعت نماز کہتے ہیں وہ ایسے بندے کی امامت میں پڑھنے کا نام ہے، ورنہ نماز کی کیا اہمیت جس کے بدلے میں ہوں. تمہیں جنت مل جاتی ہے بس. جو حقیقی 2 رکعت نماز ہے وہ ایسے مرد مجاہد کی ابتدا میں پڑھنے کا نام ہے. تو صحیح. وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالم مشرق نے اس سے کوئی بڑا آدمی آج تک نہیں جنا، اتنی بڑی ان کے ہاں ان کی عظمت ہے. تو خیر وہ اس میں افغانی یہ ٹائم نہیں پا سکے تو وہ اسلام کا سٹیٹمنٹ لکھتے. ان کا پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ ان کو عالم اسلام میں کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک وہ خاک چھانتے رہے، اور وہ مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانا ان کے لیے اولین مسئلہ تھا. تو اقبال اس میں کہتے ہیں کہ کاش کہ وہ ٹائم پاتے، اگر وہ لکھ دیتے اسلام کا سٹیٹمنٹ اس عہد جدید کے بالکل یعنی تناظر میں، تو آج اسلام زیادہ ساؤنڈ فوٹنگ پر جو ہے وہ قائم ہوتا. بہرحال وقت نے انہیں خیر مہلت نہیں دی، وہ نہ لکھ سکے. اقبال نے اٹمپٹ کی ہے وہ ریکنسٹرکشن. ڈاکٹر صاحب اب فضل الرحمان پہ تشریف ریکنسٹرکشن، لے آئے. جی جی، ریکنسٹرکشن کے اندر جو بڈنگ ہو رہی ہے، یہ میری ہوں. ٹرم کو سمجھنا. جب آپ پودا دیکھتے ہیں نا تو ایک بڈ نکلتا ہے، کسی پودے کے اوپر پہلے بڈ نکلتا ہے، اس بڈ سے شاخ نکلتی ہے، شاخ پہ پتے لگتے ہیں. تو بڈ بنیادی جو ہوتا ہے تنے سے اوپر جو ہے نا وہ اس شجر کو پورا ڈیولپ کرنے میں. تو اقبال کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس کے اندر فکر اسلامی کی بڈنگ ہو رہی ہے. اس بڈنگ کو ایک مکمل ایک شجر اسلامی، فکر اسلامی، جو جدید فکر اسلامی کا جو پورا تناور چھتنار درخت بنانے میں جو رول ادا کیا ہے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا ہے. وہ واہ. ریکنسٹرکشن کے اندر جہاں جہاں جہت نمائی ہے اقبال کی، وہ ان جہاد کو کور کرتے ہیں، ان کے اوپر اسلام کا مقدمہ وہ اس خوبصورتی سے ویو آؤٹ کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی 100 150 سال میں کوئی شاید ہی کوئی ایسا مفکر پیدا ہو جو فضل الرحمان کے کام میں اضافہ کرنے کے قابل ہو. اللہ تعالیٰ کی عنایات بے کراں ہیں، وہ کسی بھی وقت کوئی بڑا مجدد پیدا کر سکتا ہے، لیکن جو ہسٹوریکل پیٹرن ہے اس میں جو ان کی انہوں نے جو آرک ریزی سے جو کام کیا ہے وہ اتنے پائے کا کام ہے کہ وہ شاید اگلے 100 150 سال میں اس کام میں اضافے ممکن ہو. ابھی ان کو سمجھنے کا ٹائم چل رہا ہے، اور اس پہ الحمدللہ کہ مسلم امہ جو ہے اس میں اب بیداری ہے کہ فضل الرحمان کی زندگی میں وہ جو احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے نا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. واہ، کیا بات ان ہے. پہ جو ہے سنگ زنی رہی، آج ان کے لیے اعزازات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، آج ان کی اسٹیم، آج وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. آج ڈاکٹر فضل الرحمان کی اسکالرشپ پہ کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اپنی علمی وجاہت مشکوک ہو جاتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا میں تھوڑا سا اوور ویو دے دوں کہ ان کا سفر کیا ہے، پھر اس کے جی. بعد ان کے فکری اس منہج پہ ہم بات کریں گے. جی. ڈاکٹر فضل الرحمان کا تعلق پاکستان کا جو موجودہ پاکستان کا جو ہزارہ ڈسٹرکٹ ہے یہاں کے رہنے والے تھے. ملک فیملی سے تعلق تھا. ملک فیملی یہاں کے جو عوام برادری ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ملک لکھتے ہیں. تو ڈاکٹر فضل الرحمان نے بھی شروع میں فضل الرحمان ملک لکھا لیکن بعد میں ملک ڈراپ کر دیا. اب. تو بس یہ بتاتا ہے کہ ان کا تعلق عوان فیملی سے تھا، اور یہ غالباً یہ اٹک کے آس پاس یہ ان کا ایریا ہے جہاں وہ جو ان کا پیدا یعنی آبا و اجداد کا ایریا. پھر ان کے جو والد ہیں مولانا شہاب الدین صاحب، مولانا شہاب الدین اس وقت دارالعلوم دیوبند کے گریجویٹ تھے، اچھا. اور ان کے جو ہم مکتب تھے ان میں بڑی قداور شخصیات جیسے شیخ الہند، ہوں.
मुफ्ती महमूद अल हसन साहब, ये उनके बैज फेलो थे। टू सम एक्सटेंट ये भी कहा जाता है कि रशीद अहमद गंगोई साहब भी उनके बैज फेलो थे। यानी दारुल उलूम देवबंद की जो इल्मी रिवायत है उसके अंदर मुकम्मल नर्चर्ड हुई हुई शख्सियत थी मौलाना शहाबुद्दीन साहब। और मौलाना शहाबुद्दीन सिर्फ ये भी नहीं कि वो एक यानी हादसतन जो है वो इस फील्ड में आ गए थे, उनका जो मजहबी एहसास था वो बहुत गहरा था। अच्छा। डॉक्टर फजल रहमान ने अपने घर के हवाले से कुछ चीजें वो करेज ऑफ द कन्विक्शन में लिखी हैं। उसमें वो बयान करते हैं कि मेरे घर का माहौल इंतहा दर्जे का मजहबी था। वालदा और वाले साहब दोनों यानी जो मजहबी अकदार हैं उनकी मुकम्मल पासदारी और बड़ी दिल दिल के साथ, ये नहीं कि वो एक मुल्लायाना किस्म की जो है वो फकही अंदाज से हो, बल्कि उनके वो डीप सीटेड, उनके हार्ट के अंदर मजहब बहुत डीप सीटेड था। जिसके असरात ये थे कि डॉक्टर फजल रहमान 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर चुके थे। ये अंदाजा होता है कि घर की रिवायत कितनी यानी रिलीजियसली रिच मजहब। एक रिवायत थी कि एक बच्चा उस माहौल में 10 साल में कुरान पाक हिफ्ज कर लेता है। तो ये एक, तो ये अंदाजा होता है कि घर का माहौल बहुत कट्टर मजहबी माहौल था। और दूसरा ये है कि वो बड़े प्रिकॉशियस थे। प्रिकॉशियस मीन्स के कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड होते हैं, जो अपने हम अक्सर बच्चों से बहुत आगे होते हैं, ये भी कोई अल्लाह ताला का खास वो कोई वालदैन का जो मुजाहिदा और मुशाहिदा होता है वो बच्चों में शिफ्ट होता है। तो वो एक बच्चा जो है ना वो बड़ा प्रिकॉशियस होता है। तो डॉक्टर फजल रहमान के साथ एक ये भी एलिमेंट कुदरत ने उनको वदियत किया था कि वो प्रिकॉशियस भी थे। अब इब्राहिम मूसा जो है वो एक वाकया उन्होंने अभी एक रिसेंटली उनका एक पेपर आया है, बायोग्राफिकल नोट है डॉक्टर फजल रहमान पर, जिसमें उनका एक यानी बायोग्राफिकल तो बहुत कम है, फिक्री जो उनकी सवाने उम्री है उसके ऊपर है उनका। तो उसमें वो कहते हैं कि जो उबैदुल्ला सिंधी थे रहमतुल्लाह अलैह, वो इनके वाले साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। उनका इनके घर में आना जाना था। और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी चूंकि थोड़ा वो सोशलिस्ट लीनिंग के थे, रेवोल्यूशनरी थे, तो वो ट्रेडिशन से हट के ज्यादा वो रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज है ना वो उन्हें ज्यादा पसंद आते थे। तो वो हम्म। किसी बात पे बहस हो रही थी, और उस बहस के दौरान वो अपने ट्रेडिशनल मौकफ पे अड़े हुए थे मौलाना शहाबुद्दीन साहब। और अपना उबैदुल्ला सिंधी साहब जो है वो थोड़ा उसको एक रेवोल्यूशनरी अंदाज में बयान कर रहे थे। तो दोनों में बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, आपने अपने मौकफ में डटे हुए, और बड़ी हार्ड टॉक जब हुई है तो जब वो उनको कन्विंस तो नहीं कर सके तो उस वक्त छोटे से फजल रहमान जो साथ बैठे थे उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आई विल किल यू बाई दिस यंग मैन। ये उन्होंने जुमला मौलाना शहाबुद्दीन से कहा कि एक वक्त आएगा कि मैं तुम्हें इसके जरिए कत्ल करूंगा। वो कत्ल करना क्या था कि ये तुम्हारी फिक्र को जो है ना ये मारेगा, और ये बड़ा रेवोल्यूशनरी बनेगा। और ये जो है ना यानी वो फिजिकली किल करना नहीं मुराद था, जी जी यानी जी, तुम्हारी बिल्कुल फिक्र वाजी है। जो है ना वो उसको ये खत्म करेगा और ये एक रेवोल्यूशनरी बनेगा। यानी ये अंदाजा होता है कि उस वक्त जो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जैसे जो जो एक बड़ा एक्सपोजर रखते थे पूरी दुनिया का, यानी रशिया तक घूम आए थे, सेंट्रल एशिया, और बड़े यानी एक तरह के मुजाहिद और बड़े रेवोल्यूशनरी और इनकलाबी शख्सियत थे। यानी उन्हें भी फजल रहमान के अंदर एक टैलेंट अपनी उस छोटी सी एज में नजर आने लग गया, और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया। और वो इब्राहिम मूसा लिखते हैं कि बड़े जब हुए फजल रहमान, जब वो एक यानी मैच्योर स्कॉलर बने, तो वो इस बात को याद करके हंसा करते थे, कहते थे कि जो उबैदुल्ला सिंधी की जो पेशिन गोई थी वो सच साबित हुई। अब ये जुमला है इब्राहिम मूसा का, मुझे इससे थोड़ा सा मुझे तशकीक है कि ये वाकया जो है ये शायद कलरिंग हुई हुई है। क्योंकि जो डॉक्टर फजल रहमान करेज ऑफ कन्विक्शन में जो लिख रहे हैं ना उसके अंदर उन्होंने जो अपने वाले साहब के हवाले से बात की है वो कुछ दूसरी बात है। सही। वो ये कह रहे हैं कि मेरा वाले साहब जो थे
वो दारुल उलूम देवबंद के सिलेबस से बिल्कुल गैर मुतमईन थे। और उस वक्त जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, वो चूंकि जरा साइंटिफिक बुनियादों पर थी और वो बड़ी कन्विंसिंग थी, तो वो इसकी तरफ मायल हो रहे थे कि ये जो निज़ाम तालीम है, ये हमारे इस, ये जो सदियों से चला आ रहा है एक स्टैटिक किस्म का, ये उससे कदरे बेहतर है। इसके अंदर क्वेश्चन रेज करने की जो है वो पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। नॉलेज को क्रिएट कर रहा है ये इंक्वायरी के थ्रू। हमारे यहाँ तो एक इतने अरसे से जो दर से निज़ामी वज़ा हुआ था, निज़ामी बगदाद के दौर से वही आज तक चला आ रहा है, बल्कि उसमें से भी कुछ बड़े क्रिएटिव एलिमेंट्स वक्त के साथ साथ निकाले गए, कोई इजाफा नहीं हुआ। हम्म। तो उन्होंने एक जुमला कहा जो उन्होंने सारी जिंदगी पल्ले बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि देखें यंग मैन, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आई है ना, ये जो मॉडर्निटी है या जिसे हम मॉडर्निज्म कह रहे हैं, वेस्टर्न जी। मॉडर्निज्म, इसमें आपके लिए यानी आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। सही। अब ये जुमला देखें, यानी इससे अंदाजा होता है कि वो डिसग्रंटल थे, जो दरस निज़ामी का जो सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा था उसकी स्टैटिक पोजीशन से, और वो अपने वालिद, यानी उनके ऊपर, इस जुमले के ऊपर आप गौर करें तो उनके ऊपर मॉडर्निज्म के क्राइसिस भी आया है, जी। और मॉडर्निज्म के जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो भी आया है, और वो दोनों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए चैलेंज भी होगा और ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यानी अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस कि इस्लाम को आप इन पैटर्न्स के ऊपर, जो जदीद रिसर्च के उसूल हैं, उनके ऊपर अगर आप इस्लाम का मुकदमा वीव आउट करेंगे तो इस्लाम को बड़ी साउंड फुटेज मैसर आ सकती है। यानी ये जो हमारे यहाँ ये जो एक जमूद चला आ रहा है, ये जमूद जो है वो टूट सकता है। और चैलेंज इसमें क्या है कि जब आप इसको स्टडी करेंगे तो इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें जाहिर है वो सेकुलरिज्म, जिसमें वो रिलीजन को एट बैक बर्नर रखता है ये मॉडर्निज्म। यानी वो कहता है कि रिवोल्यूशन इज नो मोर नीडेड, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो चाहता है कि ह्यूमन आर्डर अंडर ह्यूमन रीजन। तो वो इसके सेटबैक्स भी हैं अपनी जगह। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपके लिए चैलेंज भी मौजूद है और अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। ये सही। जुमला है जिसने डॉक्टर फजल रहमान की जहत नुमाई की है। जिस तरह हम्म। इकबाल के वालिद ने कहा था ना कि कुरान इस तरह पढ़ो कि लगे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है, तो इसने इकबाल की काया पलट दी थी। फिर इकबाल ने कुरान को उस तरह महसूस किया, तो कुरान उस तरह उनके ऊपर वाकई रिवील हुआ। फजलुर रहमान ने हम्म। भी अपने वालिद की गाइडलाइन के तहत जब इस तरफ रुख किया, तो उन्हें उन्होंने चैलेंजेस भी सॉर्ट आउट किए और उन्होंने उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो भी सॉर्ट आउट किए। अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी उसको लिया और चैलेंज के तौर पे भी लिया, और ये उनकी जिंदगी इस जुमले का जवाब है। पूरी जिंदगी वालिद ने एक जुमले में उनको नसीहत की थी। अच्छा, फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने अरेबिक में जो है वो मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट थे। और उसके बाद वो पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड का रुख करते हैं। सही। यानी ये समझ लें कि उनकी कोई 42 43 में एमए अरेबिक हो जाता है, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब वो पीएचडी की तैयारी में लगे हुए हैं कि मैंने पीएचडी हम्म। करनी। जब वो पीएचडी की तैयारी में लगे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि यही की जाए, बाहर जाया जाए, तो मीन वाइल उनकी मुलाकात सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से हो जाती है। तो मौलाना सही। मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को भी उनमें एक बड़ा जीनियस नजर आता है। और वो पूछते हैं कि जवान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पीएचडी का इरादा रखता हूँ। ये उन्होंने कोट किया अपनी इस्लाम एंड मॉडर्निटी के अंदर कि जब मैंने ये कहा कि मैं अभी पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मौलाना मौदूदी साहब का जवाब था कि देखो, तुम जितना पढ़ोगे तुम्हारी फैकल्टीज जो हैं वो नम होती चली जाएंगी, सुन्न होती चली जाएंगी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आओ तहरीक में शामिल हो जाओ और अमली काम में जुट जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहरहाल मैं स्टडी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हम्म। तो ये मौलाना मौदूदी को ये बात अचंभे की लगी कि मतलब उनको एक अमीर जमात इस्लामी दावत दे रहा हो, लोग तो भागे चले हैं, लेकिन हम्म। उनके अंदर कुछ करके दिखाने की इल्मी मैदान में जो जस्तजू थी, तो उन्होंने उनसे एग्री नहीं किया और वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की।
अब जब वो ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एविसिना की साइकोलॉजी पर पीएचडी का थीसिस किया है। और जब उनका पीएचडी में एडमिशन हो रहा था तो जो उनका सुपरवाइजर है, उसने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये देखें कि आलम इस्लाम में जब उन्होंने अपना इल्मी उफक, इल्मी होराइजन बढ़ाने होते हैं तो मिस्र का रुख करते हैं, जामिया अल अजहर हम्म। जाते हैं। आप इधर आ गए हैं ऑक्सफोर्ड में। उन्होंने कहा कि मैं एप्रिशिएटिव इस्लाम नहीं, क्रिटिकल इस्लाम स्टडी करना चाहता अच्छा। हूँ। बहुत। यानी सुपरवाइजर को उनका जवाब देखें कि क्योंकि वहां तो जो कुछ हमारे अकायद बने हुए हैं उन्हीं की एप्रिसिएशन में डायलेक्टिक्स डेवलप हो रही होती है। क्रिटिकली देखने की रिवायत ही नहीं है मुसलमानों में, वो खत्म हो चुकी थी, वो जो डिक्लाइन का फेज शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के प्रोज एंड कॉन्स जैसे हैं मैं उनको वैसा समझना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको उन तरफ। सही। अब उनकी खुशकिस्मती ये है कि जो उनके सुपरवाइजर थे, साइमन वॉन डी बर्ग, ये ड्यू थे। इन्होंने, ये साइमन वॉन डी बर्ग जो थे, ये ग्रीक फिलॉसफी पर उनसे कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं था पूरे वेस्ट में। यानी ग्रीक फिलॉसफी जो है उसके लिए जो वो वर्ग कह दें वो हतमी माना जाता था, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी थे ग्रीक फिलॉसफी के ऊपर। डॉक्टर फजल रहमान से ये कोई ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर कोई साहब आपकी आवाज कट गई। आपने कहा कि वो ग्रीक फलसफे के सबसे बड़े अथॉरिटी थे और उसका डॉक्टर फजल रहमान का आपने नाम लिया। उसके बाद आपके कुछ जुमले गायब हो अभी दोबारा गए। आ रही आवाज। अब आ रही है, जी जी। तो वो जो साइमन वॉन डी बर्ग थे, जो हम्म। उनके वहाँ सुपरवाइजर थे, वो ग्रीक फिलॉसफी पे पूरे वेस्ट में सबसे बड़ी हम्म। अथॉरिटी समझे जाते थे। ठीक है। और डॉक्टर फजल रहमान जैसा ब्रिलियंट और शाइनिंग स्टूडेंट जब उन्हें मिला तो वो सिर्फ उनकी क्लासरूम तक उनके साथ वाबस्तगी नहीं थी, बल्कि क्लासरूम से बाहर भी उनका ज्यादा वक्त उनके साथ गुजरता था। और वो जो बड़ी लंबी लंबी वॉक्स करते थे, उन वॉक्स में वो डॉक्टर फजल रहमान को साथ रखते थे। और उन वॉक्स में भी मौजू ग्रीक फिलॉसफी चल रहा होता था। और ग्रीक फिलॉसफी में डॉक्टर फजल रहमान इतने अंदर घुस गए कि जैसे कहे ना आपके किसी की आंख इतनी बीना है कि वो 100 किलोमीटर दूर एक काले पहाड़ पे चलती हुई काली चींटी को भी देख ले। ये मैं एक तमसील बता रहा हूँ कि उसकी बिनाई इतनी तेज है कि वो 100 किलोमीटर दूर एक काले स्याह पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी को भी देखने के काबिल है। तो ग्रीक फिलॉसफी के हवाले से ये तमसील डॉक्टर फजल रहमान पे फिट आती है कि उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को इतना थारोली स्टडी किया, उसकी तमाम डायमेंशंस को स्टडी किया कि फिक्र इस्लामी में उन्हें जहां जहां ग्रीक फिलॉसफी इस्लामी फिक्र के ऊपर पेस्टेड नजर आई है ना, उन्होंने वहां पॉइंट आउट किए कि ये देखो। यानी वो गजाली को कुरेदते हैं तो गजाली के फिक्र में, हालांकि गजाली ने ग्रीक फिलॉसफी को रिजेक्ट किया था, लेकिन ग्रीक फिलॉसफी को उन्होंने स्टडी किया हुआ था और उन्होंने मजहबी ताबीर में कई मकामात पर ग्रीक फिलॉसफी का सहारा लिया। ग्रीक ग्रीक फिलॉसफी की मदद से जो एक रिलीजियस स्टेटमेंट है उन्होंने वो डेवलप किया। जाहिर है फिलॉसफी एक टूल है जो आपको चीजें डेवलप करना सिखाता है। तो कुछ जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी थी या जो ग्रीक फिलॉसफी की चीजें थी, जो ग्रीक तस्वुरात थे, उनको उन्होंने फिक्र इस्लामी के जसद में दाखिल किया अननोइंगली, क्योंकि वो ग्रीक फिलॉसफी को भी स्टडी कर रहे थे और इस्लाम को भी वो कमेंट्रीज और सुपर कमेंट्रीज। यानी गजाली साहब का अलमिया ये था कि वो इस्लाम के ओरिजिनल सोर्सेज जो है यानी कुरान और सुन्ना में बहुत वीक थे। ये इब्न तैमिया का स्टेटमेंट है कि वो जो उन्होंने सूफी पाथ लिया है ना, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे सामने तीन ऑप्शन थे कि या मैं फिलासफर बन जाऊं या मैं कलामी बन जाऊं या मैं सूफी बन जाऊं, तो मैंने तसव्वुफ को, इराक को अपनाया। तो इब्न तैमिया लिखते हैं कि काश उनके ऊपर उस वक्त ये नुक्ता वाह होता कि मैं कुरान और सुन्नत की से रजू करूं, तो वो उनके लिए ज्यादा सायब होता
لیکن بدقسمتی کے وہ ادھر نہیں گئے، لیکن صوفی رستہ بھی انہوں نے چنا ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ڈاکٹر صاحب الزام ہے نا اب، یعنی اب یہ غزالی جیسے جن کو مسلم تاریخ میں حجت الاسلام کا ٹائٹل ملا ہے، اور یہ ہمارے دوسرے ان کی طرح نہیں کہ ہر دوسرا بندہ حجت الاسلام ہے، ایسا نہیں، باقاعدہ یہ سوچا سمجھا، تو ان کے بارے میں اب یہی بات غامدی صاحب نے بھی لکھی، اور میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ بھئی یہ کیسے آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ غزالی نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، جو جس تصوف کی وہ بات کرے وہ قرآن اور سنت ہی کو پڑھ کے اس کی طرف گئے نا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ کا یہ قول ان کے بارے میں تھا، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ابن تیمیہ کا یہ قول جو ہے، یہ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ وہ درست ہے۔ اس میں آپ چلے دیکھیں خیر، ہم اس پہ بات الگ کریں گے، ابھی پھر ہم تجدید دوسری و طرف۔ احیاء دین میں مودودی صاحب نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے نا، ان سب کا جو فکر اسلامی فہم ہے وہ غزالی ان سے مختلف رکھتے ہیں نا ظاہر سے۔ اب یہی بات اپنے تیمیہ پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہی بات مودودی صاحب پہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا، انہوں نے ماڈرنزم میں جو کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل جو تحریکیں چل رہی تھی فلانا ڈمکانا، اسی کو سامنے رکھ کے اسلام کی تشریح، یہ الزام تو کسی پہ بھی لگایا جا سکتا ہے نا۔ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، میں اس کو ثابت کرتا ہوں کہ جو میں نے چلے اس کو ابھی، چلے میں نے آپ اس اس کو کو اختصار کے ساتھ ثابت کریں، میں نے اپنے اختصار اختصار تحفظات یہ کا ہے، اظہار کیا ہے۔ اگر انہوں نے جو جیمز آف قرآن جو لکھا ہے نا، اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا، جو غزالی صاحب کی کتاب ہے جی جی۔ جیمز آف قرآن کے نام سے، وہ جواہر القرآن ہے۔ کن کا؟ غزالی کی جو قرآن کے اوپر ایک بک ہے نا، جواہر القرآن، یعنی جیمز آف دا قرآن۔ اچھا آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں تو قرآن کے اوپر ان کی اپروچ بڑی جو ہے وہ آئسولیٹڈ آیات کے تحت ہے، اور بڑی جو ہے وہ پک اینڈ چوز والی ہے، تھارو اسٹڈی قرآن کی ان کے اندر وہ ہمیں نہیں ملتی۔ ابن تیمیہ کے ہاں یہ چیز ملتی ہے، ان کی فکر بتاتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو بہت غور سے اسٹڈی کیا، بلکہ اقبال کا یہ جملہ ہے اس میں ریکنسٹرکشن کے اندر کہ اگر ابن تیمیہ نہ آتا تو قرآن و سنت تو ہمارے ہاں سے جا ہی چکے تھے۔ قرآن و سنت کی واپسی ہوئی ابن تیمیہ کے ساتھ ہے، ورنہ ہم کمنٹریز اور سپر کمنٹریز میں جو سیکنڈ جو سورسز آف نالج ہیں اوریجنل سے تو ہم بہت دور جا چکے تھے۔ یہ ابن تیمیہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے واپس کمیونٹی کو قرآن اور سنت سے جوڑا ہے۔ تو یہ جی کچھ اسکالرشپ کے ایڈمیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ قرآن و سنت سے دوبارہ کمیونٹی کو جوڑنے کا اعزاز ابن تیمیہ کو حاصل ہے، اور ابن تیمیہ کو نظر انداز کیے رکھا ہے جو بیچ میں اتنا بڑا انہوں نے ٹائم گزارا ہے اپنے ڈکلائن کا۔ باقی صحیح، جتنے مجددین آئے ہیں وہ ابن تیمیہ سے زیادہ انسپائرڈ ہیں۔ تو ہاں ایسا ہی ہے، ایسا غزالی ہی جو ہے۔ ہے، غزالی نے کیا کیا ہے کہ ایک ان کی بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے پیچھے پورا سلجوق دربار کھڑا ہے، وہ دربار کا سب سے چہیتا اسکالر ہے، سب سے کم ترین عمر میں یعنی بلو 50 ہیں کہ وہ ریکٹر بنتے ہیں وہ نظامیہ بغداد کے۔ جی اب جس مفکر کو پیچھے رائل کوٹ پروپیگیٹ کرے تو اس کو کمیونٹی نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ آپ آج بھی کسی کے پیچھے اسٹیٹ ریسورسز لگا دیں تو اس کو اسٹیبلش نیریٹو آپ بھی دیکھیں نا، جو بلڈ ہوتے ہیں وہ اسی طرح بلڈ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال غزالی ایک بہت بڑے اوریجنل اسکالر ہیں، انہوں نے، میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے فقہ، تصوف اور کلام کو جو آرگینکلی لنکڈ اپ کیا، ورنہ یہ تینوں الگ الگ جو ہے وہ جا رہے تھے اپنی اپنی سمت میں، اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتووں پہ کھڑے تھے، تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ فلاس بھی آتے ہیں، یہ بھی ہاں ظاہر سی انفارمیشن بات ہوتا ہے، ہے۔ انسان اس ہے، میں انسان خاص ہے۔ طور پر انہوں نے جو یہ انٹرپریٹیشن کی ہے پرسنل سالویشن کی، کس کی؟ پرسنل سالویشن، اچھا پرسنل جی۔ ذاتی نجات، یہ جو ہر شخص اپنے یعنی وہ چند اوراد و وظائف لے کر اور جو ہے نا وہ مجاہدے مشاہدے کر کے وہ اپنی نجات پا جاتا ہے، اس کی پرسنل سالویشن کا اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار، وظائف و اوراد اور مشاہدہ اور مجاہدہ، اس سے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ معاف کیجیے گا کہ وہ جو کرسچین تھیولوجینس تھے، یہ غزالی نے ان سے لیا اور اسلام کے اوپر پیسٹ کیا۔ آپ کے یہاں جو پرسنل سالویشن کا جو تصور ہے، یعنی انفرادی نجات کا تصور، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کمیونٹی کی ہولسٹک پرفارمنس
को जो है ना वो साल्वेशन का सोर्स समझता है। कुरान में फलाह और खुसरान का तस्वुर है। कुरान जो आपको सिस्टम दे रहा है, एक मॉरल ऑर्डर आपने तारीख के गोश्त पोश में इंजेक्ट करना है, जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया। अगर आप वो निज़ाम कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपकी फलाह है, सक्सेस है। और अगर आप वो काम कायम करने में नाकाम रहते हैं तो ये आपका फेलियर है, ये खुसरान है। तो कुरान डॉक्टर में साहब। एक कलेक्टिव जो है वो तस्वुर है फलाह और खुसरान का। ये जो इंडिविजुअल है, ये जो पिछली तसव्वुफ की रिवायात थी ना, क्रिश्चियनिटी की, जोरोस्ट्रियनिज्म की और बुद्धिज्म की, ये उनका अनजाने में उनके ऊपर इम्पैक्ट है, या स्टेट के इंटरेस्ट को सेव रखने के लिए ये जरूरी था पर्सनल साल्वेशन से। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर गजाली के हवाले से इसका तो मैं आपसे फिर अलग प्रोग्राम करूंगा, अब ये जी तय जी हो गया। क्योंकि अब जी इस जी पे जी मेरे जी कुछ तहफुजात, कुछ एतराजात, कुछ सवालात है। अब मैं अगर उसमें चला जाऊंगा ना, हमारा असल टॉपिक रह ही जाएगा। जी जी। मैं अब तो नहीं चाहता, क्योंकि आप देखें माशाल्लाह साहिब इल्म साहिब मुतालिया प्रोफेसर है ना। तो अब आपको जैसे मैं थोड़ा सा छेड़ूंगा ना, तो आपने उस पूरे डिटेल को ऐसे बताना है कि कि हम जो है ना फजल रहमान को फरामोश करके कहीं और पहुंचेंगे। तो मैं अब इसलिए देखे नहीं ना, यानी चाहूंगा कि हम उस पे जाऊंगा, किसी दिन आपसे इंशाल्लाह मैं टाइम लाऊंगा इस पे बात करने। अभी हम फजल रहमान पे हम जरा जी जी जी। मरकूज रखते हैं। अब मैं अच्छा, मतलब असल आलमी में इंटरनेशनल इल्मी सतह पे अकादमिया में डॉक्टर साहब का क्या मकाम मर्तबा, क्या उनके कंट्रीब्यूशंस है, ये थोड़ा मैं सा हमें असल में ना, बताएं। अब ये आपको असल में एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो मैंने उनके होलिस्टिक मुताले से डिस्कवर किया है, ये जी कहीं जी। एक जगह नहीं है। वो सही। ये है कि उन्होंने फिक्र इस्लामी के जितने सूफी थियोलॉजियन हैं, हम्म। ज़ाहिर है ग्रीक फिलोसफी के तर्जमे तो हुए थे ना हमारे यहाँ, जी जी। और उसने हमारे यहाँ पेनिट्रेट भी किया। तो वो कहीं ना कहीं ग्रीक फिलोसफी उनकी फिक्र में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो फजल रहमान को कुदरत ने ऐसा एक विजन दिया और ऐसा एक सुपरवाइजर दिया कि जिसने ग्रीक फिलॉसफी उनको बहुत थारोली जो है वो समझाई। तो वो इस काबिल हो गए कि चाहे गजाली हूँ, चाहे इब्ने तैमिया हूँ, चाहे मुजद्दिद अल फिसानी हूँ, चाहे शाह वलीउल्लाह हूँ, वो उनकी फिक्र में बिल्कुल वो उस जगह पॉइंट आउट करते हैं कि देखें यहाँ ये ग्रीक फिलॉसफी को जो है ना वो कुरान में ला रहे हैं। यानी जहां जहां वो ग्रीक थॉट से अफेक्ट हो के कुछ कुरान की तशरीह उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो ये यानी कुरान को भी इतना थारोली स्टडी किया हुआ है और ग्रीक फिलोसफी को भी इतना थारोली स्टडी किया हुआ है कि कहीं हमारे जो मुतकद्दिमीन हैं उनकी फिक्र में हल्का सा भी ग्रीक फिलोसफी से वो कुरान की तशरीह जब करने लगते हैं तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि देखें ये ग्रीक फिलोसफी। अब ये जो कायनात अकबर और कायनात असगर का जो तस्वुर है, ये ग्रीक फिलोसफी से है। और जो लोगोस का तस्वुर है ग्रीक फिलोसफी से है। तो सूफी थियोलॉजियन जगह जगह ट्रैप होते हैं उनके अंदर। लेकिन फजल रहमान चूंकि कुरान का एक सिस्टमैटिक स्टडी रखते हैं और हाईली जो है इनरिच्ड हैं उसके कुरान के जो होलिस्टिक व्यू के साथ, तो ये बाकायदा एक एक नुक्ते पर उनको पकड़ लेते हैं कि यहाँ देखे यहाँ उनकी फिक्र में जो है ना ये यूनानी फलसफा कर रहा है। सही। ये एजाज इस वजह से था कि उनका जो सुपरवाइजर थे वो उस वक्त पूरे वेस्ट में ग्रीक फिलोसफी पे सबसे बड़ी अथॉरिटी थे, और उन्होंने उनको ग्रीक फिलोसफी थॉरोली स्टडी करवाई। और कुरान को उन्होंने जब उस मेथोडोलॉजी के तहत, कुछ यूरोपियन मेथोडोलॉजी के तहत समझा, तो कुरान भी एक होलिस्टिक व्यू के तौर पे वो किसी चीज को पार्शियली तो ट्रीट करने के कायल ही नहीं थे ना। किसी चीज का जो जुजवी, वो जुज जब तक उस होलिस्टिक के अंदर रख के चेक नहीं करते और वो जुज कुल के साथ नहीं मिलता या कुल उस जुज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो कहते हैं ये देखो यहाँ कंट्राडिक्शन है। सही। और उस कंट्राडिक्शन को वो सॉर्ट आउट करते हैं। आप उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि सोल बॉडी डुअलिज्म जो है, यानी हम्म। जिस्म और रूह की जो दुई है, ये पुरानी तस्वुर नहीं है। ये ग्रीक फिलॉसफी से लिया है गजाली ने, और गजाली एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। जब उन्होंने इसको ओन किया है तो आज तक हमारी रिवायत के अंदर वो एज इट इज चला आ रहा है। ठीक। कुरान नफ्स की बात करता है, कुरान रूह की बात नहीं करता। रूह के मफाहिम कुरान में कुछ और हैं। वो कहते हैं ये ग्रीक फिलॉसफी से, यानी सोल बॉडी डुअलिज्म का तस्वुर ऐसा चिपका है कि आप देखिए कि अब हम जब भी कोई मरता है कि उसकी रूह उसके कफ से उनसरी से परवास कर गई। यानी गोया कि रूह कुछ और चीज है और जिस्म कुछ और चीज है।
वो कहते हैं कि कोई प्लेजर या कोई पेन, ना वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है ना वो कंप्लीटली फिजिकल है। तो ना हम्म, फिजिकली, फिजिकल इज नथिंग विदाउट स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल इज नथिंग विदाउट फिजिकल। इन दोनों का इम्तिजाज है जिसका नाम नफ्स है। तो वो सोल सही। बॉडी का जो डुअलिज्म है उसको वो बड़ी साउंड फुटेज पे जो है वो गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो वो ग्रीक फिलोसफी से लिया। और हमारी पूरी फिक्र इस्लामी के अंदर आप देखें, सारे मकातब के अंदर ये सोल बॉडी डुअलिज्म चलता है। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये यूनानी फलसफे की छाप है। तो खैर, सही। एक तो उनको ये बेनिफिट मिला कि वो साइमन वॉन डिबर्ग के स्टूडेंट बने जिन्होंने ग्रीक फिलोसफी में बहुत वो किया। और फिर एविसीना की साइकोलॉजी के ऊपर उनका पीएचडी का थीसिस है। तो उसके बाद उन्होंने डरहम यूनिवर्सिटी में फारसी और अरेबिक पढ़ाई है 5-6 साल वही यूके में। ठीक। सही। वहां से फिर उनको मौका मिलता है, वो चले जाते हैं मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में। और वो कनाडा, चूंकि आपको पता है कि वो कभी कॉलोनाइजर नहीं रहा, हम्म। उसने कभी किसी कौम को कॉलोनाइज नहीं किया। वो खुद ठीक। ट्वाइस कॉलोनी रहा है, एक दफा यूके की कॉलोनी रहा है, एक दफा फ्रांस की। यानी उसका एक्सपीरियंस हमसे भी बदतर है कि हम हमारे सही। ऊपर तो एक ही पावर आई थी यूके की, लेकिन उसने दो इंपीरियलिज्म भुगते हैं, यानी फ्रेंच भी और ब्रिटेन का भी। सही। अब ब्रिटेन जो है उसके कोई इंपीरियल इंटरेस्ट नहीं थे, तो वो इस्लामिक टीचिंग्स को अपने इंपीरियल इंटरेस्ट के मुताबिक इंटरप्रेट करने की जरूरत उसको नहीं थी। तो वहां इस्लामी स्कॉलरशिप पे जेन्युइन काम हो रहा था। सही। यानी आप देखें ना कि जो यूके ने इस्लाम पे जो ओरिएंटलिस्ट को दिए काम उन्होंने किए, या जो यूएसए का जो इंपीरियलिज्म है उसने जो ओरिएंटलिस्ट तैयार किए, तो उन्होंने इस्लाम की इंटरप्रिटेशन ऐसे की है जो उनके इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व करती हो। कनाडा का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कनाडा में जो इस्लामिक थॉट की जो ट्रेडिशन है वो बड़ी साउंड और वो बड़ी जेन्युइन है। उसमें ठीक। विलियम कैंटवेल स्मिथ जैसे आदमी मौजूद थे जो वहाँ, यानी वो जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च था मैकगिल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें विलियम कैंटवेल स्मिथ के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला और इन्होंने वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन की। तो उन्होंने उनको ये टास्क दिया कि आप इस्लाम पर इस तरह की रिसर्च करें कि इस्लाम का जो फंडामेंटल थीसिस जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो ये जो सही। बुक इस्लाम है, ये हाँ। कैंटवेल स्मिथ की रिकमेंडेशन पर लिखी गई है। यानी अच्छा। ये इस्लाम का बुनियादी मुकदमा है एक फॉरनर के लिए कि वो इस्लाम को किस तरह समझे कि इस्लाम में, यानी उसके अंदर आप देखें कि वो लीगल डेवलपमेंट भी है, हदीस और सुन्नह की हम्म। डेवलपमेंट भी है, तसव्वुफ भी है, मॉडर्निज्म से एनकाउंटर भी है। तो यानी वो किताब जो है इस्लाम, इस लिहाज से एक होलिस्टिक थीसिस है इस्लाम का। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बुनियादी मुकदमा है उन्होंने इस्लाम में बयान कर दिया है, और बाकी जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, इस्लाम एंड मॉडर्निटी, रिवाइवल एंड रिफॉर्म, और ये जो द मेजर मेजर थीम्स थीम ऑफ ऑफ कुरान, कुरान। और वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा सुपरफिशियल व्यू लगता है। वो कहते हैं कि ये बाकी उसी इस्लाम के अंदर जो थीसिस रख दिया गया था उसकी एक्सप्लेनेशन हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन जैसे वो मेजर थीम्स ऑफ कुरान है या रिवाइवल एंड रिफॉर्म है, इवन इस्लाम एंड मॉडर्निटी, वो हर जहान दीगर है और अपनी वसअतें रखता है। तो इस लिहाज से उन्होंने वहाँ विलियम कैंटवेल स्मिथ की रिकमेंडेशन पे वो बुक लिखी। मीन वाइल उन्हें लाहौर से ऑफर हुई इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करने की। डॉक्टर फजल रहमान ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। इस पे हालांकि कैंटवेल स्मिथ कह भी रहे हैं उनको कि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप चले जाएं और अपनी कौम को सर्व करें वहाँ। क्योंकि कैंटवेल स्मिथ कहता है कि मैं जितने इंडियन से मिला हूँ, फजल रहमान उनमें ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड हम्म। जितने में। हालांकि वो उन्होंने इस्लाम एंड मॉडर्न टाइम लिखी है, इधर इंडिया में वो रहे हैं, उनका बड़ा इनकाउंटर रहा है सब कॉन्टिनेंट से। वो कह रहे हैं कि आज तक मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं इंडियन से या मुसलमानों से,
तो उनमें द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड जो था वो डॉक्टर फजल रहमान था, ये उनकी कमेंट्स उनके हवाले से। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो उसके कुछ 2-3 साल बाद उनको फिर ऑफर हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से फुल प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करने की। अगेन उन्होंने ये ऑफर टर्न डाउन कर दी। उस वक्त कैंटरल स्मिथ और दीगर उनके जो कोलीग थे, उन्होंने उन्हें बहुत फोर्स किया कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाके उनमें सर्व करें। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ सकते ये नुक्ता, जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ये दरअसल मैं उन्हीं की खिदमत कर रहा हूँ। हम्म। यानी उनको जो कैंटरल स्मिथ के साथ काम करने में जो मजा आ रहा था, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप हो रही थी वहाँ, नए अंदाज से नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो वो ये समझ रहे थे कि यहाँ से जो मैं सीख रहा हूँ ये अल्टीमेटली उन्हीं के काम आना है। तो यहाँ मेरा रहना भी उन्हीं के मफाद में है, मैं वहां नहीं जा रहा। फिर जब अयूब खान के यहाँ जो है वो 62 में एक दफा बजट पेश हुआ, तो उस बजट में चूंकि इंटरेस्ट के इश्यूज थे, तो कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने उस बजट पे साइन करने से इनकार कर दिया कि इसमें इंटरेस्ट की बात है, लिहाजा ये हराम है, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तो उस वक्त अयूब खान भले एक डिक्टेटर था, लेकिन बड़ी मॉडर्न इम्पल्स रखता था, वो नए दौर के तकाजों को समझता था। सैंड हर्स्ट का फारिग तहसील था, ब्रिटेन का जो उसको एक्सपोजर था, तो वो समझ रहा था कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मगरबी फलसफे और ये मईशत के तस्वुरात और सियासी तस्वुरात, ये बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं। तो इस्लाम अगर इनके साथ अपनी कंपेटेबिलिटी या इनके साथ डिबेट से अपनी जगह नहीं बनाता तो इस्लाम का फ्यूचर मखदूश है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक इजहार किया कि ये जो जदीद पढ़े लिखे जो सेकुलर यूनिवर्सिटीज के जो सेकुलर निज़ाम तालीम के परवरदगान हैं, इनको अगर मदरसे के इस्लाम रहा तो ये फ्यूचर में ये इस्लाम से ये हट जाएंगे। अगर इनको फ्यूचर में इस्लाम में रखना है तो फिर हमें इस्लाम की ताबीर नौ करना होगी, इस्लाम की ऐसी इंटरप्रिटेशन दरकार होगी जो अहद हाजिर के मसाइल को समझे और अकोमोडेट करे। सही। तो फिर ये जस्टिस जावेद इकबाल कहा करते थे कि मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर फजल रहमान से रब्ता करें। अच्छा, फरजंद नेक्स्ट इकबाल। जी जी जी, जस्टिस जावेद साहब ये मुझे बाकायदा वो खुद कहा करते थे, मेरी उनसे बड़ी गुफ्तगू रहती थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फजल रहमान को मेरी रिकमेंडेशन पे अयूब खान ने अप्रोच किया था। सही। तो फजल रहमान इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के नाम से था, इस्लाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इस्लामिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट यहाँ कराची में बनाया था। और वो जो डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो फाउंडिंग वाइस चांसलर थे कराची यूनिवर्सिटी के, वो उसके हेड थे। ये इस्लामिक इंटरप्रिटेशन इसका टास्क था इस इंस्टीट्यूट का। तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के लिए फजल रहमान को ये ऑफर भिजवाई, और डॉक्टर फजल रहमान ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा और उन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली। वो आ गए, उन्होंने ये ज्वाइन किया। अब जो डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब थे, उनकी जरा जो लाइनिंग थी, उनका जो लाइजान था वो इस्टेब्लिश हो चुका था जमात इस्लामी के साथ, और वो कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते थे। डॉक्टर फजल रहमान ने उनका नाम लिए बगैर ये चीजें इसी इस्लाम एंड मॉडर्निटी में डिस्कस की हैं। तो यानी एक आदमी जिसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से था, उसको इस्लामिक लर्निंग का हेड बना दिया गया। आप समझ गए उनका किस तरफ जी जी। इशारा है? हम्म। प्रोफेसर, इश्तियाक। नहीं नहीं, इश्तियाक तो वाइस चांसलर है ना। जो इस्लामिक लर्निंग बनाया है डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी का, उसका जो पहला हेड जो बनाया गया, वो कह रहे हैं कि उसका इस्लामिक जो है ना, यानी टीचिंग से स्टडी से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं था, वो इकोनॉमिक्स के आदमी थे। इकोनॉमिक्स का तो वो कौन साहब थे? प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की तरफ इशारा है। सॉरी, प्रोफेसर। खुर्शीद अहमद, अच्छा अच्छा, जमात ठीक इस्लामी। ठीक।
जी जी, सही सही सही। उन्होंने कहा तो उसने ऐसी बुनियाद रख दी कि कभी उसकी दुरुस्त जहत नुमाई आज तक नहीं हो सकी इस्लामिक लर्निंग कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की, यानी कि उसकी पहली नीयत ही गलत रखी गई। तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा थे कि वो आदमी इकोनॉमिक्स का आदमी था, और उसको तो फिर लामाला वो, फिर आप देखिएगा तो वो बनाया भी उन्हीं को गया था। तो उस वजह से उन्होंने वो पॉइंट आउट किया। तो उनके चूंकि पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, तो उस इदारे में जो री इंटरप्रिटेशन का काम था वो पॉलिटिकल एम्बिशन से जो है वो उसका एक तसादुम हो रहा था। आप देखे ना हम्म। कि मौलाना मौदूदी जब तक सियासत में नहीं उतरे उससे पहले उनका फिक्री मिनहाज कुछ और है। जब वो सियासत में आए हैं तो उनको जगह जगह कंप्रोमाइज करना पड़े हैं। जिस देवबंदियत के अगेंस्ट वो खड़े हुए थे, फिर उसके साथ साथ वो अपने आप को जगह जगह अलाइन करते नजर आते हैं। वो जो सियासी जरूरियात थी उसका एक ज़ाहिर एक वो बनता है। तो इसलिए डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी इंटरप्रिटेशन के हवाले से संजीदा नहीं थे। फजल रहमान ने आते ही बगैर वक्त जाय किए उनसे मिले इश्तियाक साहब से, और उन्हें कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने फौरी अपनी कुछ जो है ना वो अपना एक प्रोजेक्ट बना के उनको पेश कर दिया कि इन इन लाइन्स पे हम काम करेंगे। तो उन्होंने उनके अंदर जो सर्द मेहरी देखी, उन्होंने कहा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उन्होंने डायरेक्ट अयूब खान से मुलाकात कर ली। उन्होंने कहा कि मैं ये इरादा रखता हूँ और उसके लिए मैं यूं काम करना चाहता हूँ, और ये जो आपने हेड बनाए हुए हैं मुझे लगता है कि वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त इश्तियाक हुसैन कुरैशी को फारिग किया और इनको डायरेक्ट अपने आर्डर से अपॉइंट कर दिया उस इंस्टीट्यूट का हेड। सही। आप डॉक्टर साहब ने हेड बनते ही सबसे हम्म। बड़ा जो काम। जब हेड बनते ही क्या, उसके बाद से आपकी आवाज बिल्कुल ही। जी जी, जब वो हेड बने हैं ना तो उन्होंने एक चीज जिसको बहुत ज्यादा महसूस किया कि सबसे पहले करने का काम है, वो एक मगरबी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से एक असूल सीख के आए थे ना, हिस्टोरिसिज्म का। अच्छा। हिस्टोरिसिज्म ये है कि वो कोई भी तस्वुर है उसके पैदा होने की वजूहात को स्टडी करना, कि ये आइडिया उस वक्त सोशल माइलियो क्या था जिसमें ये आइडिया डेवलप हुआ है। फिर हिस्ट्री के क्या मुख्तजियात रहे हैं कि ये आइडिया आगे चलते चलते तारीख में मुख्तलिफ जो अहम जंक्चर्स थे तारीख के, वहां इसमें क्या कमी बेशी होती रही, और फिर वो आइडिया फिर क्या रुख अख्तियार किया, जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री ऑफ आइडियाज कहने हैं इसको। ठीक ठीक। यानी आइडियाज की हिस्ट्री को डिस्कस करना कि आइडियाज जिस सोशल माइल्यू में डेवलप हुए हैं वो क्या वजह थी, और फिर वो आइडियाज आगे चलते चलते जब थोड़ी उन्होंने वैलिडिटी खोई और नया चैलेंज आया तो क्या उनके अंदर चेंज आई, और फिर वो कैसे स्मूथ चलने लग गए, और फिर किसी अहम मोड़ पे जाके उनकी जरूरत नहीं रही तो उसको रिप्लेस कैसे किया जा रहा है नए आइडिया के जरिए। तो ये तरीका कहलाता है हिस्टोरिसिज्म का। यानी पूरी हिस्ट्री को छानना। इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत टर्म ये उन्होंने जो राय थी जर्मन फिलॉसफी में, बाइबल की इंटरप्रिटेशन में, अहले जर्मनी जो थे उन्होंने ये तरीका अपनाया था कि वो सेट जेम लिबन जो है वो स्टडी किए जाएं जिसमें ये हुक्म आ रहा है बाइबल। सही। अब जब आप सेट जेम लिबन, ये जर्मन इडियम है, जब आप इसको स्टडी करेंगे उसमें लुगत में, तो ये आपको वेग सा आइडिया देगा कि ये सेट जिम लिबन क्या होते हैं। मैंने इसको बड़ा पूरा हफ्ता एक्सप्लोर किया है सेट जिम लिबन को समझने के लिए। तो सेट जिम लिबन बेसिकली क्या है, आप देखना इस टर्म का मतलब, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग्स। सही। यानी जब ये कुरान का कोई हुक्म, या वो तो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये मेथोडोलॉजी डेवलप की ना, कि जब बाइबल ये हुक्म दे रही है कोई,
تو اس کے سیکزم لیبن کیا ہے، اس وقت کی سائیکالوجیکل کنڈیشنز کیا تھی، یعنی انسان کا ذہنی ارتقا کس لیول پہ کھڑا تھا، سوشولوجیکل کنڈیشنز کیا تھی، یعنی سوشولوجی کی پیٹرن کیا تھے، اس سماج کا جو ایک پیٹرن تھا وہ کیا تھا، اس کی کیا سوشولوجی تھی، سوشولوجیکل سیٹنگ، اور پھر ہسٹوریکل سیٹنگ. یہ ایک بہت بڑی وسیع ٹرم ہے سیٹزم کا، یعنی سائیکالوجیکل، سوشولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل سیٹنگز. اس کے اندر اس آئیڈیا یا اس حکم یا اس نص کو سمجھنے کا طریق جو جرمن نے بائبل کی انٹرپریٹیشن میں وضع کیا تھا فضل الرحمان، اس کو لے رہے تھے کہ ہم بھی اپنے ہاں قرآن و سننا جو ہے اس کو سیکزم لبن کے لحاظ سے، ہسٹوریسزم کے لحاظ سے اسٹڈی کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس وقت کیا نور صاحب آگے میں محرکات تھے کہ یہ آئیڈیا پیدا ہوا، ہوں، کیا فرق. جی جی، کوئی میں نے سوال؟ کہا آگے نہیں، میں نے اس پہ ایک مستقل میرا سوال ہے نا، جو اس ڈاکٹر فضل الرحمان کی فکر پہ جب ہم بات کریں گے نا، تو ڈبل مومنٹ آف تھیوری یا دوہری حرکت کی تھیوری، اس پہ ہم تفصیل سے وہاں بات کریں گے. تو ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ یہ نا کہ اب جی جیسے ایوب خان کے دور میں وہاں آئے، انہوں نے یہاں پر کام شروع کیا، پھر یعنی یہ آپ تھوڑا مختصر بتا دیں نا، ابھی ہم ان کی صرف سوانی پہ تھوڑا بات کرنا چاہ رہے ہیں، فکر پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. وہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو جو ہے نا وہ مکس اپ ہو جائے، مکس ہو جائے، اور جی کوئی جی جی. وہ نہ رہے. تو خیر صرف یہ اس میں کہ انہیں یہاں جی جی. 8 سال کا پھر میرا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے نہیں نہیں، ابھی صحیح آواز. آواز. جی. انہیں کوئی 8 ایک سال کا ٹائم ملا ہے یہاں کام کرنے کا، اچھا، 8 سال کام کیے، ایوب اچھا. خان کے ساتھ. صحیح. اس میں انہوں نے جب ہسٹوریسزم کو پیٹرن بنایا، تو انہوں نے جو تحریریں لکھی سننا کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اجتہاد کے حوالے سے، اجماع کے حوالے سے، تو یہاں وہ تحریریں جمع کر کے جو ان کی بک بنی ہے وہ بنی ہے اسلامک میتھڈالوجی ان ہسٹری. یہ وہ ایک ان کا بہت بڑا کام ہے، جو پورا ہسٹوریسزم ہے فکر اسلامی کا. اس کو اس کے اندر انہوں نے حدیث کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، سنت کی کیا ڈیولپمنٹ ہے، اجماع کے اندر تصور کیسا تھا پھر کیسا بنا ہے، اجتہاد کے کیا پیٹرن تھے، کہاں سے چلے، کس طرح جا کے یہ جو باب اجتہاد ہے یہ کلوز کیسے ہوا، ان سارے محرکات پہ ٹھیک ڈسکس ہے. کر کے پورا جو مسلم امہ کا جو وہ فارمیٹو فیز ہے، اور پھر جو پوسٹ فارمیٹو فیز ہے، یعنی فارمیٹو فیز جو ہے جو وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں فکر اسلامی کے ارتقاء میں، جی وہ جی جس جی. میں کہ یہ ساری ڈسپلن ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ فارمیٹو فیز بھی پورا انہوں نے اس میں رکھا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے فارمیٹو فیز کو پھر پوسٹ ڈیولپمنٹ جو ہیں، یعنی فارمیٹو فیز کے بعد پھر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک پورا چیپٹر ہے. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہ پوائنٹ، یعنی ایک بطور ماڈل رکھ کے انہوں نے آخری چیپٹر کے اندر بتایا ہے کہ دیکھیں کہ کتنا قریب وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا، لیکن ان کے دور تک سوشل چینج کتنے بڑے پیمانے پہ آ چکی تھی کہ انہیں بہت ساری چیزوں کو یعنی ری انٹرپریٹ کرنا پڑا، اور ان کے لیے ان کے نئے جو ہے انہوں نے اتحاد یہ میرے کیے، خیال سے اور ہاں. ان کا ایک اچھا رزلٹ. صحیح. یہ 5 ابواب ہے نا تو اسلام پھر کی ابتدائی عہد میں: سنت، اجماع اور اجتہاد کے تصورات. باب دوم سنت اور حدیث، تصور سنت پر تفصیلی بحث. باب سوم قرون اولا کے تشکیلی دور کے بعد کا اسلام. باب چہارم قرون متأخرہ میں اجتہاد. اور باب پنجم معاشرتی تغیر سنت اولا. یہ کتاب جو جی آپ جی بتا جی، رہے ہیں اس کے یہ اندر ان یہ کے ابواب ہے. چیپٹر ٹھیک. ہیں. ٹھیک. یہ اس کے اندر انہوں نے یہ تفصیلی، یعنی انہوں نے اپنا وہ پورا جو ایک ہسٹوریسزم جو اسٹڈی کر رہے تھے، کر کے آئے جی تھے میتھڈالوجی ویسٹرن اکیڈمی میں، جی. اس کے تحت انہوں نے یہ پورا جو ہے بہت جامع جو ہے وہ فکر اسلامی کا خاکہ انہوں نے پیش کر دیا اس بک کے اندر، جو ایک لحاظ سے سمجھے کہ آپ کے پاس بنیادی ٹیمپلیٹ ہے آگے فکر اسلامی پر کام کرنے کا یا سمجھنے کا. لہذا یہاں پر ان کو ترک خیر وطن کیوں یہاں ان کی کرنا کچھ پڑا پھر؟ کنٹروورسی. ہجرت کیوں کی؟ یہ مختصراً بتایا پھر یہاں سے. اصل میں ان کی جو کتاب ہے اسلام، جی اس کے اندر انہوں نے جو چیپٹر ہے نا قرآن، اس چیپٹر پر انہوں نے وہی جو ہے اس کا ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ لکھا ہے.
वो जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जब कुरान खुद कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे दिल पे मोहर लग जाएगी, यानी नो मोर देयर वुड बी रिवलेशन, यानी इसका मतलब है कि लोकस जो है रिवलेशन का वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक है। और वो कह रहे हैं कि दिल मुबारक जो है वो कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि जिब्रील आता है और उसमें कुछ रिकॉर्ड करवा के चला जाता है और आप उसको उसी तरह बयान कर देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि उसकी रिसेप्शन में आपकी भी बदरजा उला इन्वॉल्वमेंट है, हम्म। यानी आपके चूंकि इडियम जो अरबी है, जो आपका जो लैंग्वेज है उस कास्ट के अंदर वही आ रही है, तो आपको पैसिव रिसिपिएंट नहीं कहा जा सकता। आपकी कवा का वो लेवल है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो रही है वही के अमल में। अब वही जो है उसको उन्होंने कुरान के अंदर से बयान किया, कुरान के आयत को हवाला बनाकर। और फिर जो वही के हवाले से जो तस्वर है मुजद्दिद अल-फ़सानी का कलाम नफसी, कि वो उसको लिया हम्म। उन्होंने, उसके अंदर कुछ इजाफे किए शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा ने तस्वर वही में। ठीक। शाह वलीउल्लाह का जो तस्वर था उसको मजीद साइंटिफिक इडियम में ले आए हैं इकबाल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अब अलमिया ये था कि जो तस्वुर है वही शाह वलीउल्लाह और इकबाल ने बयान किया है, उसमें एक लेक्यूना था, लेक्यूना ना कहे कमी थी। कमी ये थी कि उन्होंने जो वही का तस्वुर पेश किया वो आके उसको एक शायर के ऊपर जो कलाम उतरता है या एक आर्टिस्ट के ऊपर जो चीजें आती हैं वो भी एक वही की ही फॉर्म है, वो भी हम समझते हैं। जिस तरह वो माइकल क्या नाम है उनका, जो कहता था कि मुजस्मा जो है आप कैसे तराशते हैं, वो कहते हैं मुजस्मा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मैं बस उसको देख के बनाता चला जाता हूँ। यानी हम्म। जब एक लेवल आता है ना एक किसी फन जी। में, कोई वो रासिखुल इल्म हो जाता है, तो वहां वही इंटरवीन करती है कि उसके जिसको कि हम वो कुरानी वही या स्क्रिप्चरल वही के हम पल्ला तो करार नहीं दे सकते, लेकिन वो भी एक वही की फार्म है। अल्लाह ताला उसके ऊपर अलका कर रहा होता है, यानी शेर जो है वो अचानक एक फिक्स की शक्ल में शुरू होते हैं। और इकबाल के कई ऐसे वाकयात हैं कि उन्होंने कई बार एक ही नशिस्त में 25-25 30-30 अशार की जो है ना वो फिलबदी उसी वक्त लिख दी, यानी एक फेज आया ये। बल्कि जब उनके उस्ताद ने उनसे कहा था कि ये तेरी कौम क्या जो है कितनी नाकिसुल अक्ल है, ये कहती है कि तुम्हारे पैगंबर पे वही आती थी, तो इकबाल ने कहा ये तो मुझे अपनी शायरी के बारे में गुमान होता है, कुरान तो बहुत आला दर्जे की चीज है। हम्म। तो वो माइकल जो एंजलो मेरा ख्याल है नाम था, वो जो बनाने में मुजस्मा साजी में बहुत हद दर्जे की महारत रखता था, तो उसने जो बड़े बड़े मुजस्मे बनाए हैं उसमें हजरत इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक, हजरत मूसा का भी एक स्केच बनाया है। आप देखें वो पड़ा है उसके ऊपर, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, उस पे आपको मिल जाएगा, आप देख के उसको हैरान हो जाएं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितना आप परसीव कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा एलिमेंट्स उसने उस फिगर के अंदर डिपिक्ट किए हैं। सही। तो फजलुर रहमान ने ये जो किया है कि जहां शाह वलीउल्लाह और जहां फिक्र इकबाल आके डिस्टिंग्विश करने में नाकाम हो जाती है कि फिर वो जो वही जो नबूवत पे जो नबी पर जो वही आती है उस वही, और ये जो इल्हाम होते हैं शोरा पर या जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं अहले फन पर, उनमें कोई लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन तो होनी चाहिए ना। हम्म। आपने यहां तक तो बिल्कुल। डिफाइन कर दिया कि ये कोई इस तरह का फिनोमिना है, तो फिर ये जो कमी थी उस तस्वुर में, उस कमी को इकबाल ने यूं पूरा किया, फजल रहमान ने, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खास ये इसी इस्लाम के वो जो चैप्टर है ना कुरान, उसमें आप देखिएगा जी। कि ऐसा जो है वो हमदर्द के अंदर वो छपा था। अभी जो आपने आखिरी बताया ना किस किस में छपा था वो मजमून आप बात कर रहे थे, एक तो ये वही और इस पे बात करते हुए। ये हमदर्द इस्लामिकस में उनका आर्टिकल छपा था। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। इस फिर। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जो बुनियादी काम किया है वो यानी जो कमी थी, यानी
मुजद्दिद अल फैसानी, शाह वलीउल्लाह और इकबाल। लेकिन वो यानी मुतनाज़िया क्यों होगा? ये तो ऐसा काम नहीं है ना जिसमें मुतनाज़िया हो जाए। मैं आपको अर्ज करता हूँ ना। तो हुआ ये कि ये आर्टिकल जब हमदर्द इस्लामिकस में गया है छपने, तो उस वक्त हकीम सईद साहब जो हैं उनको कॉल जाती है कि ये आप वही पे एक आर्टिकल छाप रहे हैं जो नहीं छपना चाहिए। ये कहाँ से कॉल आती है? कहीं से भी कोई मतलब उनको कॉल करता है, किसी को पता चला कि ये वही पर अच्छा। थोड़ा सा बड़ा रेडिकल। ठीक। तो ये मुझे जाफरी साहब ने बताया, डॉक्टर सैयद हुसैन मोहम्मद जाफरी साहब। जी। वो उस वक्त हमदर्द इस्लामिकस के मुदीर थे। अच्छा। वाह। वो बताते हैं कि मैं छापा खाने पहुंचा हुआ था छपवाने के लिए, कि मुझे वहां उस छापा खाना जिसमें जाहिर है उनका भी पीटीसीएल नंबर था, तो मुझे वहां हकीम सईद ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल निकाल दें, इस पर जो है ना ये बात हो रही है। वाह। ये बड़ा जो है अच्छा। ना वो रेवोल्यूशनरी है और रिवायत से हटकर है, तो ये वही को जो है ना वो मुतजिला वाले अंदाज में लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना इसको निकाल दें। तो जाफरी साहब बड़े पाए के स्कॉलर थे। वो खुद बर्नार्ड लॉयस के स्टूडेंट रहे थे ऑक्सफोर्ड में, और लखनऊ से भी पीएचडी, और बड़े पाए के स्कॉलर थे। उन्होंने कहा हकीम साहब से कि इस तरह नहीं होगा। तो अब मैं आपको अर्ज कर रहा था, कहाँ रुकी थी बात, हकीम सही साहब वाले इशू की ना। हकीम सईद के उधर जब वो पहुंचे तो वहां पर फोन आ गया उनको, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब तो को। जी जी, जब जाफरी साहब को हकीम सही साहब ने फोन किया कि आप ये आर्टिकल बीच में से निकाल दें, तो हम्म। उन्होंने वजह पूछी कि इशू क्या है। तो उन्हें बताया गया कि जी इस पे बड़ी क्रिटिक आ रही है और ये कह रहे हैं कि जी ये कोई अपनी रिवायत से हटकर कोई मुतजिला टाइप रिवायत पे इसको इन्होंने लिखा है, तो लिहाजा ये निकाल दें। अच्छा। तो जाफरी साहब बड़े पाए के स्कॉलर थे और बड़े अनकम्प्रोमाइजिंग किस्म के स्कॉलर थे। उन्होंने कहा हकीम साहब ये आर्टिकल मैं छापूंगा और इसके साथ मैं नीचे नोट लिख दूंगा कि जो जो इन चीजों की तसहीह करने की कुदरत रखता है उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, और वो इसके अगेंस्ट लिखे, हम उनको स्पेस देंगे। तो इस पे हकीम सईद मान गए कि ठीक है फिर लिख दें। तो जाफरी साहब हंस रहे थे कि जब ये मैंने छापा तो इस पर किसकी जरूरत थी कि इसकी कोई वो कोई स्कॉलरशिप का लेवल कोई होता कि वो हाँ। इसको समझते और इसका कोई जवाब देते, फिर क्या बात आनी थी। फिर वो मौलवियाना सियासत इसके ऊपर शुरू हो गई। सही। सही। इस पे कुछ हम्म। लोग कहते हैं कि इस इशू पे मौलाना मौदूदी को वो जो अपनी अना आड़े आई ना, जो उन्होंने कहा था कि आ जाओ जमात इस्लामी में और छोड़ो ज्यादा पढ़ने लिखने को, तुम्हारी कवा उससे ज्यादा वो नम होंगी और तुम मैदान में आओ, मैदान अमली आदमी बनो। तो ये जो एजी नौरानी ना, वो जो लिखते थे डॉन में वीकेंड पे कॉलम, इंडियन एक स्कॉलर है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लॉयर थे। अच्छा। तो उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि यानी मौलाना मौदूदी को फिर अपनी वो भड़ास निकालने का मौका मिल गया, तो फिर इर्द गिर्द से चारों तरफ से जो है ना बहुत बड़ा वाह वैला हुआ इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर यानी मुस्लिम फैमिली लॉ वो बना चुके थे, उसके खिलाफ भी एक फ्रस्ट्रेशन थी यानी कदामत पसंद हलकों में। फिर ऊपर हुआ ये कि जब वो बजट के ऊपर कुछ पार्लिमानी नुमाइंदों ने इस वजह से साइन नहीं किए कि इसमें इंटरेस्ट यानी रिबा है, तो हम ये गैर इस्लामी हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तो उस पे अयूब खान ने कहा कि मुझे फिर इसके ऊपर जो है ना वो ब्रीफ किया जाए कि इसका क्या हल निकाला जाए। उस पर डॉक्टर फजल रहमान ने एक बड़ी अर्करेजी से हम्म। आर्टिकल लिखा, रिबा एंड इंटरेस्ट, और ये उन्होंने अयूब खान को पेश किया। वहां से ये किसी यानी सहाफती हलकों को ये लीक हो गया, खास तौर पर डॉन को। तो डॉन ने फ्रंट पेज पे ये हेडलाइन जमाई, डॉक्टर फजल रहमान रूल्स रिबा हलाल। हम्म। समझ गए। अच्छा। हाँ। यानी मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि जो वो रिबा एंड इंटरेस्ट का आर्टिकल है
وہ کوئی صحافی اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا، اور اس کی کیا انہوں نے خوبصورت پوزیشن، انہوں نے اس کے شروع میں کہا کہ اس آرٹیکل کے شروع میں ڈاکٹر فضل الرحمان نے ایک تھوڑی سی دو تین جملوں کی وضاحت کی کہ یہ جو لفظ سود ہے، اب اس لفظ پہ غور کرنا ان کے جملے پہ، یہ جو لفظ سود ہے عربی لفظ ربا کا تو ایکویلنٹ ہے، لیکن جو قرآن کے اندر جو ربا کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، تو جو وہاں ٹرم جو ربا کا ایک فلسفہ قرآن ڈیولپ کر رہا ہے، اس کا یہ ایکویلنٹ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ہوں بڑا واضح فرق بیان کیا کہ اس پہ یہ ہم نے عربی تفصیل ٹرم سے آپ سے ربا پوچھنا ہے، کا، ہاں آگے ہم نے اس پہ جی جی، تفصیل سے پوچھنا ہے کہ ربا کا تصور کیا تھا اور اس پہ کیوں یہ ہنگامہ ہوا۔ تو ٹھیک، اچھا انہوں ایک نے یہ وجہ تھی۔ انہوں نے تو شروع میں یہ کیپشن دیا، اور انہوں نے پورے احادیث کے سورسز سے اور اس کا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اور قرآن کا جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے ربا کا، اس کے اوپر ایک بڑا لینتھی آرٹیکل تو میرا خیال ہے بنتا ہے یہ 30-35 پیجز کا، وہ انہوں نے لکھا، اور وہ ڈان کو لیک ہوا تو ڈان نے بغیر سوچے سمجھے اس آرٹیکل، اب فضل الرحمان تو اتنے مشکل اسکالر ہیں کہ ان کو جب اس ایک چیپٹر ایک بک کا جو ہے وہ پیش کیا گیا، ڈاکٹر فضل الرحمان نے دیا پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو لکھا کہ وہ جو لائف ٹرانسلیٹ انٹو سمپل انگلش، یعنی جن کو وہ نہیں سمجھ سک رہا، ایوب خان ان کا جو ڈکشن ہے، ان کا جو اسکالرلی انداز ہے، اس کو وہ نہیں کر رہے، ایک ڈان کا رپورٹر کیا اس کو سمجھے گا؟ اس نے جو ہے نا ڈائریکٹ جا کے یہ سرخی جما دی فرسٹ پیج پہ کہ ڈاکٹر فضل الرحمان رولز ربا حلال، یہ اس لگی، اور پھر تو بھگدڑ مچ گئی پورے قدامت پسند حلقوں میں، اور پھر ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے، اور پھر ان کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں ایس ایم ظفر جو تھے سینیٹر رہے ہیں یو ہوں ایس کے دور میں، قانون کے ماں۔ جی جی، تو وہ اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا، ان سے سوال ہوا کہ کیا ڈاکٹر فضل الرحمان نے جو مقدمہ بیان کیا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، حکومتی موقف کیا اس کو انڈورس کر رہا ہے جو اس آرٹیکل میں بیان ہوا ہے؟ تو سینیٹر ایس ایم ظفر نے کہا کہ ہاں، یس وی انڈورس اٹ، لیکن جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس نے باقاعدہ ڈان رپورٹر سے کہہ کر کہا کہ اس میں سے میرا اسٹیٹمنٹ جو انڈورسمنٹ کا ہے وہ نکال دیجیے۔ تو اس طرح کی منافقت کا سامنا انہیں خود حکومتی حلقوں سے کرنا پڑا۔ ہوں اب وہ ٹھٹھا چلے گئے، طبیعت خراب ہوئی ان کو، کچھ ہارٹ کے ایشوز ہوئے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر یہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کنٹری وائڈ جو ہے احتجاج شروع ہوئے، اور اس یعنی عوامی پریشر کے تحت ایوب خان نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا، انہوں نے استعفیٰ دیا اور چلے گئے امریکہ۔ تو صحیح۔ یہ ان کا اب دی موسٹ پروڈکٹیو کیریئر شروع ہو رہا ہے اسلامک یعنی یہاں تھاٹ پر کی ڈیولپمنٹ کے ہاں حوالے سے، پھر انہوں نے بڑا یہ معیاری بس یہاں پر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں نا کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ان کا تعارف ہے علمی، بس یہ میں چاہ رہا ہوں، پھر میں آگے فکر پہ جانا چاہ رہا ہوں اصل میں۔ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ پھر ان کا جو ریمیننگ کیریئر ہے وہ ہے سارا یو ایس اے کا، اور اچھا۔ انہوں نے بڑا جم کے کام کیا ہے وہاں، باقاعدہ جو اسلامک ٹریڈیشن آف نارتھ امریکہ جو ہے اس کے وہ فاؤنڈر ثابت ہوئے۔ آج یعنی نارتھ امریکہ میں جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے، اسلام کی جو فکر اسلامی کی جو شرح اور وضاحت ہے، یا جو ہو رہی ہے باقاعدہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی، ڈاکٹر فضل الرحمان جب امریکہ گئے تھے تو اس وقت وہاں کے جو ریسرچ کے جو حلقے تھے وہ اسلام کو ایز اے سیریس ٹریڈیشن، انٹلیکچوئل ٹریڈیشن نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایک کنجیکچرز کا مجموعہ ہے، اس میں اوہام پرستی اور سپرسٹیشن، اور اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ریسرچ کے پیمانوں پر پوری نہیں اتر سکتی۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان نے کلاس روم میں یہ کہا تھا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے کہ یو کین اگنور لا آف گریوٹی بٹ یو کین نیور اگنور اسلام، یعنی ہوں لا آف گریوٹی اتنی بڑی حقیقت ہے، یعنی اس کو تو تم اگنور کر سکتے ہو لیکن یو کین نیور اگنور اسلام۔ ان کا کنوکشن دیکھا نا، اسلام کے اوپر جو ان کا کنوکشن ہے، وہ اس کو کس انداز میں یہ کلاس روم میں کھڑے کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا۔ وہ
डॉक्टर मंजूर अहमद मुझे बता रहे थे कि फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उन्हें भी कुछ अर्सा उन्होंने वहाँ अमेरिका की जामियात में लेक्चर दिए, पढ़ाया। कह रहे हैं कि मैंने वहाँ ये महसूस किया कि डॉक्टर फजलुर रहमान की वजह से अमेरिकन एकेडमी में इस्लाम को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। आप जुमले पे गौर करें, एक फिलोसफर ये कह रहा है उनके बारे में। यानी मैंने जो ऑब्जर्व किया वहां, वो ये ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर फजलुर रहमान की वजह से इस्लाम को इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा है अमेरिकन एकेडमी में, सही। एकेडमिक जो उनके इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के अंदर। तो वो इस लिहाज से एक, फिर आप उनका देखें ना, उनके बारे में ये किबला अयाज मुझे एक दफा बता रहे थे, जब मैं पीएचडी का थीसिस कर रहा था, कह रहे कि जब मैं यूके में पीएचडी कर रहा था तो उस वक्त कुछ ओरिएंटलिस्ट इकट्ठे हुए, कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो कह रहे उसमें मैंने सुना था कि उनकी तहरीरों में, तहरीरें पढ़कर लगता है कि मुसन्निफ ने एक एक जुमले पर हफ्तों और महीनों की रियाजत की है। इतना तोल के लिखने वाले आदमी, हम्म। उसके अंदर कोई गैप नहीं छोड़ते। अपनी बात जो वो बयान करते हैं उसको कमा हक को बयान, कोई उसमें गैप रहता नहीं। आपके जहन में जो सवाल जन्म ले सकते हैं उनको भी वो फिलोसॉफिकली इनकैप्सुलेट कर देते हैं उस अपने मुकदमे के अंदर। ये उनका एक बहुत बड़ा जो है वो फिक्र इस्लामी की ताबीर के हवाले से बड़ा कारनामा है। मुझे वो शेर याद आ रहा है मजीद अमजद का। वो कहते हैं कि कहीं महमलों का गुबार उड़े, कहीं मंजिलों के दिए जले, कहीं महमलों का गुबार उड़े, कहीं मंजिलों के दिए जले, हमें आसमां रह कारवां, ना मकाम है ना मुकीम है। ये जो हमें ताहत नजर जो एक आसमान खम होता नजर आता है ना, तो लगता है कि आगे दुनिया खत्म हो रही है। कह रहा है मैंने दुनिया के इस झमेलों में देखा है कि कोई कहीं तो महमल गुबार उड़ा रहे हैं, यानी गामजन है अपने सफर पे, और कहीं कोई मंजिलों की खुशी में बैठा वहां दिए जला के बैठा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो खमे आसमां हमें नजर आता है, यानी जो हम समझते हैं कि यहाँ चीज खत्म हो रही है, वहां जाके देखो तो वो जगह भी आपको रह कारवां लगती है। न मुकाम है न मुकीम है, ना कोई यहाँ फाइनल मुकाम है और ना कोई फाइनल मुकीम है। तो फिक्री मैदान में कोई मुकाम और मुकीम का तस्वर नहीं है। इल्म एक बहुत बड़ा जो है वो कारनामा है, एक बहुत बड़ी बड़ा फील्ड ऑफ वर्क है। कुरान जो इल्म को भी नूर कहता है, और अल्लाह ताला जब अपनी सिफात बयान करता है तो क्या कहता है, अल्लाह नूर समावत वल अर्द। तो आप इससे देखें ना कि इल्म बजाते खुद लगता है खुद खुदा है। यानी अल्लाह नूर समावत वल अर्द, और इल्म को भी जब अल्लाह ताला नूर कहे तो इससे अंदाजा होता है कि इल्म कितनी बड़ी, कितना बड़ा जो है वो फील्ड है, और इसमें कितनी रियाजतें दरकार होती हैं। और ये कारवान इंसानी कहीं समझता है कि आखिरी मकाम को छू लिया है, लेकिन फिर आगे आते हैं मुसाफिर और उसको आगे फिर शुरू करते हैं। तो डॉक्टर फजल रहमान को मैं उसी पैराए में देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ जो है ना अपना काम यानी हतमी अंदाज में कर अच्छा दिया डॉक्टर है। साहब। लेकिन हाँ, जी जी। ये जो इनके हम पढ़ते हैं, ये काजिम साहब ने भी लिखा और इनके सवानी में कि इन्होंने कई इनके मजामिन इंसाइक्लोपीडियाज में छपे हैं, अंग्रेजी और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इस्लाम वगैरह में। तो वो क्या, वो वही चीजें हैं जो उनकी किताबें हैं, इस्लाम एंड मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म, और ये जो मेजर थीम ऑफ कुरान इस्लाम, या उनका जो इस्लामी मनहज फिक्र का तारीख, ये यही है, या इसके अलावा वो मजामीन हैं? और क्या उसका भी कोई उर्दू वगैरह में किसी जगह तर्जुमा हुआ है, और उसकी वो कोई इन तादाद कम है या बहुत ज्यादा है? उनकी असल में जो कुल जो उनका काम है वो उनके, यानी ये किताबें हैं जो 8 किताबें हैं मेरा ख्याल है, और बाकी 83 आर्टिकल्स है। अच्छा। सही। ये उनका यानी पूरा काम है उनके फिक्र के लिहाज से देखा जाए, जो उन्होंने रिसर्च के मैदान में कंट्रीब्यूट किया है। तो इन्हीं में से उठा के चीजें वहाँ वो इंसाइक्लोपीडिया, खासतौर पर अच्छा। मेजर थीम्स ऑफ कुरान जो है ये ठीक। इंसाइक्लोपीडिया का हिस्सा है। ठीक ठीक। और चले इसमें भी तो उन्होंने बहुत। वो जो आखिरी 2-3 चैप्टर्स हैं वो उन्होंने फिर उसमें एड अप किए हैं, ताकि वो पूरा वो एक बैकग्राउंड हो आपके सामने कि इस्लाम इमर्ज कैसे हुआ है, और उसका जो क्या तनाजुर रहा है वहाँ पगान से और
क्रिश्चियन और जुडाइज्म के साथ किस तरह उसकी आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन हुई है, कहाँ उसने उनके साथ सेम वेवलेंथ इख्तियार किया है, कहाँ डाइवर्जेंस हुई है। तो इस्लाम की वहाँ भी पूरी डेवलपमेंट का आपको खाका जो है वो उन्होंने क्लियर किया है इन दो कम्युनिटीज, खास तौर पर जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के लिहाज से। चलिए डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा चलते हैं डॉक्टर साहब की फिक्र की कुछ चीज़ों पे बात करने के लिए, अगर यहाँ कोई और बात आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ। जी जी। नहीं, बिल्कुल। अब मैं मेरा ख्याल है कि हम उनके कुरान के ऊपर जो उनकी नजर है उस पर बात करने का वक्त आ गया है कि कुरान को उन्होंने किस उससे तरह। पहले एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। अगरचे ये गुफ्तगू में कुछ किसी हद तक वो बात वाजी हुई, लेकिन चूंकि गुफ्तगू बहुत आग फैली हुई गुफ्तगू हो गई है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक आप जो है ना ये बताएं कि जब हम डॉक्टर फजलुर रहमान साहब कहते हैं तो उनका फिक्री पैराडाइम क्या बनता है, जिसमें रहते हुए फिर वो बाकी सारी चीजों को देख रहे। क्या वो कोई सुन्नी हनीफी टाइप कोई स्कॉलर है जिन्होंने उस सुन्नी हनीफी मकतब में रहते हुए दीन की तशरीह की, या वो कोई अहले सुन्नत की किसी और शाख में उनका को आप फिट करते हैं, या आप ये कहते हैं कि वो कुरानिस्ट है जो मुनकिरीन हदीस टाइप उस पैराडाइम में रहते हुए उन्होंने दीन की तशरीह की है, या आप उनके बारे में ये कहेंगे कि वो इनमें से कोई नहीं थे, वो एक बिल्कुल आजाद फिक्र और इन सब से हटकर खुद एक अपनी जात में एक मुजतहिद, अपनी जात एक मुजद्दिद थे। अगर ऐसा था तो उनका फिक्री पैराडाइम क्या बनता है, जिसके अंदर बैठ के रहते हुए फिर हम आगे उनकी फिक्र को समझेंगे। ये मुख्तसरन आप मुझे बता दीजिएगा, बात शायद मुख्तसर ना हो सके लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मुख्तसर बयान कर दूं। उसमें ये तो तय है कि उनका जो ब्रॉट अप है वो देवबंदी इस्लाम में हुआ है। वो हुआ है, ठीक है, वो तो यानी आपने शुरू उनके में बता वालिद दिया। साहब भी वहीं के ग्रेजुएट, जी, और वो फिर तो हो गया। उन्होंने दरस निजामी घर पे अपने वालिद के साथ पूरा वो पढ़ा ठीक हो है। गया, ये यानी हो गया। उनका जो फंडामेंटल्स हैं वो वही हैं जो देवबंदी इस्लाम के हैं। लेकिन जब उन्होंने कुरान को एक फंडामेंटल बनाया है अपना, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो उस वक्त उन्होंने फिर कोई परवाह नहीं की कि आया कि मैं देवबंदी हूं या मैं अहले हदीस हूं। फिर उन्होंने किसी मसलक को फॉलो नहीं किया। हर मसलक के जो मतलब के समझे कि उनके वीक पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने चुन चुन के हाईलाइट किया है। ठीक। उन्होंने खुद, ये आपको हैरानगी होगी कि उन्होंने कहा कि इस्लाम का जवाल ही अहले सुन्नत वल जमात के वजूद में आने से शुरू हुआ। अच्छा। यानी वो जो हमने डिस्कस किया था ना, यानी वो जो इर्जा है, हाँ, वो कदर और ये सारा बिल्कुल। यानी इर्जा जो पहले इर्जा। उन्होंने वो हुआ, और उन्होंने कहा कि असल में वो इकबाल की तरह इस पॉइंट पे, यानी वो बहुत पॉइंट्स पे वो अफगानी और इकबाल का तसलसल है। अगर अच्छा। इकबाल और अफगानी को आप किसी मसलक के अंदर बंद कर सकते हैं तो शायद वो भी बंद हो सके। लेकिन अगर वो मसलक में बंद नहीं हो सकते तो फिर फजल रहमान को भी किसी मसलक में बंद करना बहुत मुश्किल है, ठीक। बल्कि ठीक। नामुमकिन है। वो हो ही नहीं सकते। जो ठीक। उनकी ठीक। पैराडाइम डेवलप हुई है सही। उसमें उनको असल में जो ये एज हासिल हुआ है कि फंडामेंटल्स हमारे यहाँ दो कमजोरियां जो रही हैं वो ये हुई, जैसे सर सैयद और उनके हल्के के जो लोग हैं, ये मॉडर्न एजुकेशन में तो बहुत आगे तक हो आए थे लेकिन फंडामेंटल्स में कमजोर थे। यानी दरस निजामी का वो पूरा सेटअप उसमें से मुकम्मल गुजरे हुए लोग नहीं थे। अब वो कहते हैं कि यही अलमिया है कि जो मॉडर्न एजुकेटेड है वो इस्लाम के फंडामेंटल्स का इदराक नहीं रखता, इसलिए वो मार खाता है। उसकी वो कमिटमेंट बन ही नहीं सकती जो दरस निजामी से गुजरा हुआ, मदरसा एजुकेशन से गुजरा हुआ है। फंडामेंटल्स के लिहाज से वो बहुत साउंड खड़ा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बयान किया कि जो मॉडर्न जो मदरसा एजुकेशन से निकला हुआ आदमी है वो फंडामेंटल्स में तो बहुत साउंड है, बड़ा फर्मली जो है उसमें वो खड़ा है, लेकिन वो इस्लाम की जो तारीख है ना तो वो तारीख का शऊर रखता है और ना वो तारीख इस्लामी का मुतालिया रखता है। तो उसका वो जो आइडियलिज्म है, वो जो आइडियलिज्म हिस्ट्री के गोश्त पोस्ट में इंजेक्ट ना हो सकता, फिर वो आइडियलिज्म क्या है?
वो जो उसने कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने जो वो आइडियल बात कही थी कि जो तुम्हारे दाएं रुखसार पे मारे थप्पड़ उसके लिए बायां आगे कर दो, वो कह रहे हैं कि अगर ये आज उसको क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेती है इस आइडियल को, तो शायद मैं मोहम्मद से पहले उनको रखता, जो 100 ग्रेट मैन की जो जिसमें लिखी है। तो कह रहा है कि चूंकि मोहम्मद एक इंतहाई प्रैक्टिकल, यानी वहाँ आइडियलिज्म और रियलिज्म वो बाहम उनका जो इम्तिजाज और इंसबाग है वो बदरजा अतम मौजूद है, तो इसलिए मैं उनको फर्स्ट लिस्ट में पहले नंबर पे रख रहा हूँ। सही सही। तो वो आइडियलिज्म जो मदरसे का है, अगर वो तारीख के गोश्त पोस्ट में इंजेक्ट नहीं हो सकता, तारीख के शऊर से वो बहरामंद नहीं है, तारीख जिसको बार बार कुरान जो कहता है कि ये देखो खंडरात और सीरू फिल अर्द क्या है, यानी जोग्राफिया पे गौर करो और फिर उन कौमों को अरूज और जवाल को स्टडी करो, ताकि उससे तुम्हें अंदाजा हो कि खुदा का पैटर्न क्या है सोसाइटीज को चलाने में। और तो बाब नबूवत जो खत्म हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान ने कहा कि अब तुम्हें हिस्ट्री से सीखना होगा, अपने नफ्स से सीखना होगा, और ये जो आफाक है इससे सीखना होगा। तो इसलिए सर बाब, हम अच्छा, सही। जी जी। तो हम तो डॉक्टर साहब जी आप जुमला मुकम्मल करें फिर मैं पूछता हूँ। तो अब मदरसा जो है वो इन चीजों से बेबह रहा है, जो कुरान ने ये बाब ठीक नबूवत बंद ठीक। करके जो 3 बाब खोले हैं, मदरसा तो उधर रुख ही नहीं करता। तो सही डॉक्टर सही। फजल रहमान मदरसे की डाई के अंदर फिट इन नहीं होते। नहीं। जब ठीक। उन्होंने यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से चले हम्म, गए, वहाँ वहाँ की मेथोडोलॉजी को स्टडी किया और वहाँ उन्होंने बड़ी अर्करेजी से इस्लाम को स्टडी किया, तो उन्होंने वहाँ मैकगिल में पहला थीसिस जो करवाया शरीफ उल मुजाहिद को, वो अफगानी पर था। हम्म, कैंटवेल स्मिथ और इन्होंने मिलके, शरीफ उल मुजाहिद ने मैकगिल इस्लामिक इंस्टीट्यूट जो था उसमें उसने जो पहला अपना एमफिल का थीसिस लिखा है, वो 19th सेंचुरी रिफॉर्मर सैयद जमालुद्दीन अफगानी का जो रोल है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, उसके ऊपर सही थीसिस। इससे अंदाजा करें कि वो बहुत पहले से वो उस लाइन के ऊपर उनको अंदाजा हो चुका है कि मेरे जो लाइन ऑफ थॉट और लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो अफगानी की रिवायत जो इकबाल तक आती है, मैंने उसको आगे बढ़ाना है। सही। तो इस थोड़ा लिहाज से उनको हम्म, आप किसी मसलक में बंद नहीं कर सकते। सही उन्होंने दियोबंदियत का भी जहां फलाह है, उसके अंदर जो सबसे तारीख का अनोखा जो उसके रोल उसके यहाँ नजर आता है डॉक्टर फजल रहमान के यहाँ, वो ये है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ फिक्र आम लोगों के लिए होती है और कुछ अरिस्टोक्रेसी के लिए। ये ग्रीक फिलॉसफी के अंदर ये चीज आ रही थी, और उसके तहत आप देखें कि इमाम गजाली ने भी जो बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग लिखा और अवाम उन्नास के लिए अलग लिखा, इब्न सीना सही ने है। भी हुक्मा हाँ और वो तो सब फिलोसफर और नहीं किया। साइंसदानों के लिए अलग लिखा और अवाम उन्नास के लिए अलग लिखा। अच्छा, फिर ये इकबाल तक ये बात हमें नजर आती है। इकबाल जो बात रिकंस्ट्रक्शन में कह रहा है वो उर्दू में कहने की जरूरत नहीं कर सका। डॉक्टर सही है। फजल रहमान के अंदर ये जुर्रत मौजूद है। वो कहता है कि कोई कम फहम है तो उसकी जिम्मेदार स्टेट है, उसने उसको एजुकेट नहीं किया। वो इंटेलेक्चुअल इगैलिटेरियनिज्म पे यकीन रखते थे। उन्होंने इकबाल, गजाली, इब्न सीना और हमारी रिवायत में ये जो बात आ रही थी कि खवास के लिए अलग आपने लिखना है, वो कहते थे कि ये खवास और अवाम उन्नास की तफरीक ही तो ब्रह्मन और शूदर की तफरीक तक ले जाती है। हम्म। तो उन्होंने डॉक्टर साहब हम डंके की चोट पे कहा जो हम्म, उनकी जहन में आया, फिर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर शिया नाराज होंगे, मेरे ऊपर दीबंदी नाराज होंगे, अहले हदीस नाराज होंगे। उन्होंने किसी की, आप देखें ना, अहले तशय्युक के लिए एक जुमले में उनका पूरा थीसिस उड़ा के रख देते हैं। कहते हैं कि अगर एक जमानत कोई दे कि एक डायनेस्टी के अंदर जो सारे आने वाले हैं वो बड़े ही अक्लमंद और जय्यद और मुसले होंगे, तो फिर डायनेस्टिक रूल जो है वो जायज है। अगर इस चीज की गारंटी नहीं है कि एक डायनेस्टी के अंदर आने वाले सारे जय्यद और बड़े अच्छे रिफॉर्मर और बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते और अहले दयानत नहीं हो सकते, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि खानदान नबूवत के अंदर जो है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हर आने वाला जो उनके यहाँ है वही अहले खिलाफत का और वही जो है वो सियादत का अहल है। एक जुमले के अंदर उन्होंने उस चीज को उड़ा के रख दिया, सही। कोई परवाह नहीं की। बल्कि उन्होंने कहीं ये भी लिखा है कि पाकिस्तान से मेरे निकलने में एक अहम किरदार अहले तशय्युक का भी है, क्योंकि उन्हें मेरी चीजें बहुत खटती थी।
صحیح. تو تو ہم डॉक्टर یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان ایک روایتی سنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب اور یہ سب وہی اسی مکتب سے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی تعلیم وغیرہ حاصل کی، ایک دانشورانہ لیول پہ انہوں نے جب کام شروع کیا، تو اب وہ ایک آفاقی مفکر بنے، کی جنہوں نے اپنا کچھ پیرامیٹر وضع کیے دین کو سمجھنے کے یا ان سب چیزوں کا جائے، اور اس کے اوپر جس مسلک یا جس بڑی شخصیت پہ زد پڑی، اپنے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جب دین کی تشریح کی، تو اس کی انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی کہ میری زد جو سنت پہ پڑ رہی ہے، شیعت پہ پڑ رہی ہے، خارجیت پہ پڑ رہی ہے، اعتزال پہ پڑ رہی ہے. یعنی ایک ایسے مفکر تھے وہ آفاقی، جس کو ہم کسی مسلک کے اندر نہیں رکھیں گے. ٹھیک. بلکہ یہ ہو آپ گیا. حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہیں کہیں خوارج کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، کہیں کہیں ہوں. جو ان کے اپریشیٹنگ پوائنٹ انہوں نے معتزلہ کو اپریشیٹ کیا ہے. صحیح. صحیح، تو بالکل کلیئر ہو گیا. انہیں جہاں حق بہت لے کے زبردست. جا رہا ہے وہ وہاں جا رہے ہیں، اور ہاں اب ہم. بغیر ہوں. آپ دیکھیں امام غزالی پہ جو ان کا تھیسس ہے، وہ بالکل انہوں نے امام غزالی کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ حجت الاسلام ہے اور بڑا برا منایا. ابن العربی کو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے تو میں اپنے دشمن خرید رہا ہوں. لیکن انہوں ابن نے تیمیہ کوئی کے ایسا ساتھ بہت رحم دلی سے کام لیا. کس کے؟ ہاں، ابن اب- تیمیہ چونکہ قرآن کی اسپرٹ سے انہیں بہت قریب نظر آئے ہیں، انہوں ٹھیک. نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے ہم ابھی کسی اور جگہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، یہ جتنے آپ کے یہاں جدید مفکرین اور مصلحین نکلے ہیں نا، چاہے وہ مودودی صاحب کی شکل میں ہو، اپنا قطب کی شکل میں ہو، یا یہاں تک کہ اہل تشیع دنیا میں بھی کچھ ایسے مصلحین نکلے ایران وغیرہ میں، آیت اللہ برقعی اور اس ٹائپ کے، ہمارے ہاں شرف الدین صاحب. تو یہ میں آگے کسی پوائنٹ پہ پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان سب کو ہم نے ابن تیمیہ کے ثناخوانی کرتے ہوئے یہ نظر آتا ہے. ابھی ایسے مختصر آپ بتانا چاہے تو بتا دیں، ورنہ آگے کسی سوال کے ضمن میں یہ پوچھوں گا آپ سے، کیونکہ یہاں پر دیکھنا فضل الرحمان جیسے بندہ، علامہ اقبال انہوں نے بھی خطبات پہ جس بندے کی تعریف کی وہ ابن تیمیہ جی ہی ہے. ابن تیمیہ کے ساتھ تو مسئلہ یہ، آپ دیکھیں ایک ان کے جملے پر غور کریں جب وہ غزالی اور ابن تیمیہ کو بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان، تو وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ میں اسلام کا پازیٹیوزم اور کلیکٹیوزم ہے ہوں. اگینسٹ انڈیویجولزم آف غزالی. صحیح. غزالی کے ہاں وہ جو پرسنل سالویشن کی میں نے بات کی ہے وہ انڈیویجولزم ہے. ابن تیمیہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام کا کلیکٹیوزم، یعنی اسلام ایک کلیکٹیو ایفرٹ کا نام ہے، ایک کلیکٹیو انڈیور کا نام ہے، صحیح. ایک اجتماعی کاوش کا نام ہے. یہ کسی کی پرسنل سالویشن کا یہ وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی آیا ہوا ہے دیگر مذاہب سے اسلام میں. اسلام بالکل اس کا جو فلاح اور خسران کا تصور ہے وہ اقامت دین کے لحاظ سے وہ وہی ہے کہ اگر آپ نے ایک نظم اخلاق قائم کر دیا ہے قرآن کے جو مارل پولیٹیکل ویژن کے مطابق، اس میں آپ کی فلاح ہے. اگر آپ وہ قائم کرنے میں ناکام ہو گئے تو یہ آپ کا خسران ہے. یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ جو ہے داعش، القاعدہ، اور یہ الاخوان اور اس طرح کی جو پولیٹیکل اسلام والی اور جو لوگ مسلح جدوجہد کر رہی ہے تنظیمیں، ان کا بھی آئیڈیل ہے وہ. یہ میں نے اچھا، داعش اب کی تو بات کتابوں میں وہی ہے کہ ہے ان کا ہی بھی ہے. آئیڈیل ہے، لیکن ان کا جو ابن تیمیہ محمد بن عبد الوہاب، وہ بھی ان کو اپنا وہ میں نے پچھلے بھی عرض کیا تھا کہ ہاں. انہوں نے ایک ٹرانکیٹڈ ابن تیمیہ اٹھایا، ہاں، انہوں وہ نے آپ نے ایک اس پہ ٹوٹا تفصیل سے پھوٹا بات کی. اجزاء میں اٹھایا اپنی نیڈز کے جی مطابق. جی جی، اس پہ آپ ابن نے بات کی. تیمیہ ہولسٹک وہ اٹھایا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، صحیح. بلکہ وہ ان سے ایک سٹیپ آگے کھڑے ہیں ابن تیمیہ سے بھی، مجدد الفسانی. لیکن ٹھیک. مجدد الفسانی کی ابن تیمیہ کے ساتھ جو اب ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ابن تیمیہ کو جس طرح محمد بن عبد الوہاب نے کٹا پٹا ابن تیمیہ اٹھایا ہے، اپنی ضروریات کے مطابق اٹھایا ہے اور وہاں کی جو پولیٹیکل نیڈز تھیں ان کے مطابق اٹھایا ہے. ابن تیمیہ کو تو پچھلی کئی صدیاں یہ لوگ تاکہ نسیاں پہ رکھ چکے تھے. ہاں ابن ایسا وہاب ہی ہے. کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ کو اٹھایا ہے، ان کی فکر کو جو ہے وہ جھاڑ صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ابن تیمیہ ہی واز لانگ فار گاٹن، وہ تو کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. ابن تیمیہ بادشاہتوں کو سوٹ کرتا تھا؟ اگر ابن تیمیہ کی فکر
وہ تو بالکل کرنے اول کا اسلام لے کے پھر اٹھتے ہیں، اور اس اسپرٹ کا جو ہے وہ آیا ان کے یہاں ملتا ہے، اس لیے اور وہ جو، ہاں بالکل، اور وہ فقی مسالک کی قطعیات اور اس میں سے کسی ایک میں رہنے، ان سب سے بغاوت کر کے مجتہد مطلق بن جاتے ہیں۔